So, hello guys, I'm Jay Joshi. I'm from third year of engineering, and today we will be having a small session on Git and GitHub. And I'll be taking the introduction part. Now, Git and GitHub is a very technology which is useful for everyone because it is independent of the language that we are learning, and it helps us to collaborate with people. uh, from different, like they can, from remote areas we can contribute on the same project, so it is very useful regardless of which language or which technology you are learning. And so I'll be taking the introduction part, and then Akash and Satyam will be going into more technical parts of Git and GitHub. So yeah, without any further uh, delay, let's start. And I want to first start by explaining what source code means. So, in computing, source code is any collection of code with or without comments written using a human readable programming language, usually as plain text. The source code of a program is specially designed to facilitate the work of computer programmers who specify the action to be performed by a computer, mostly by writing source code. So basically तुम कुछ भी project या किसी पे work करते हो. हेलो जय जय Yeah, जय yeah, yeah. स्क्रीन शेयर करना Oh, so my bad, my bad. Just a हाँ second. Okay, मेरा एक्चुअली यू नो व्हाट मेरे को सिर्फ 1 मिनट वापस ज्वाइन करने थे ये मीट को, बिकॉज आई थिंक मेरा ये वाला स्क्रीन शेयर होगा. um, 1 मिनट, जस्ट ए सेकेंड. हाँ मेरे को कोई कुछ डाउट या कुछ पूछे तो बताना, क्योंकि मुझे दिखेगा नहीं है मीट या इस पे. ओके हाँ श्योर जस्ट लेट मी नो इफ माई दिस प्रेजेंटेशन इज विजिबल टू यू गाइस. यस इट विजिबल ओके कूल. सो हम लोग सोर्स कोड के बारे में बात कर रहे थे. सो सोर्स कोड इज़ नथिंग बट जो भी तुम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो उसमें जो एक्चुअल लाइंस ऑफ कोड है जो तुमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो एक्चुअल लाइंस ऑफ कोड कैन बी टर्म्ड एज सोर्स कोड. ऑल द फाइल्स जिसमें तुमने कोड लिखा हुआ है. The source code is often transformed by an assembler or compiler into binary machine code that can be executed by the computer. The machine code might then be stored for execution at a later time. Okay, so basically it is the code before, मतलब वो executable file बनता है उसके पहले का, before the code gets compiled जो files अपने पास होता है that is known as source code. So ये सिर्फ एक basic understanding है source code के बारे में, because we might encounter this term multiple times ahead in the course. So now let's understand what's open source software. So open source software is a type of computer software in which source code is released under a license in which the copyright holder grants users the rights to use, study, change and distribute the software to anyone and for any purpose. Open source software may be developed in a collaborative public manner, and is a prominent example of open collaboration. Okay. So open source software मतलब जब भी कोई developer decides to give the source code with the application. And what does it mean by giving the source code? That means कि उसने जो कोड लिखा हुआ है कुछ एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो उसने पूरा का पूरा तुम्हें दे दिया है, and you can make your own changes, you can modify the code according to your requirements and you can play around with it. So this is what is understood by open source software. And of course there are a lot of licenses and this agreements that you have to go into to understand open source code. But एकदम basic understanding में इतना ही है कि source code जो है उसके साथ दिया हुआ है, so you can make changes as per your requirement or convenience. Okay, so now we are just going to talk about a few examples of open source code, and one of the most popular ones are
open source software is Linux. So what is Linux? You must have heard about Linux. We also had a small workshop in the past week on Linux. Linux is a family of open source Unix-like operating systems. It is an operating system based on the Linux kernel. An operating system kernel first released on 1991, okay, by Linus Torvalds. Linux is typically packaged in a Linux distribution. Okay, so just understand that Linux is an operating system which is like Unix. Unix जो operating system था ना वो तभी it was a proprietary software. I mean it is still a proprietary software, but it was very useful. So people wanted a free version of it, and that's what Linux provided basically. Linus Torvalds was from Finland, Helsinki, studied in University of Helsinki. So yeah. And distributions include the Linux kernel and supporting system software and libraries, many of which are provided by the GNU project. Many Linux distributions use the word Linux in the name, but the Free Software Foundation uses GNU Linux. Okay. So gist इसका क्या है ना कि ये जो GNU project था ना ये भी मतलब 1970 या समथिंग में स्टार्ट हुआ था बाय अ मैन कॉल्ड रिचर्ड स्टॉलमन. एंड उसका मेन ये था कि मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मुझे एक कंप्लीट सिस्टम बनाना है जो ओपन सोर्स हो. सो even the operating system is open source and all the software that are used on the operating system, they all are open source. And they were working on a collection of software and they were to a great extent very successful. But उनको जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था ना वो बनाने में उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी. एंड ड्यूरिंग द सिमिलर टाइम ये लिनक्स जो है वो इट हैड बीन डेवलप्ड बाय दिस लाइनस. सो व्हाट दे डिसाइडेड टू डू इज जो भी खुद का उनका सॉफ्टवेयर था ना वो उन्होंने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया सो दैट इट कुड प्रॉपरली वर्क विथ लिनक्स. एंड दैट्स हाउ नाउ वी नो लिनक्स. सो लिनक्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड a lot of the software that we use on Linux, they are made by the GNU collaboration. So that is all about Linux, and there are a lot of open source softwares we can talk about, but I'm just going to talk about one more open source software, which is Stockfish. Do you guys, any of you play chess? Nobody? Okay, cool. So I am really fascinated by chess. So I really like to play it. I'm not good at it, but I'm very much fascinated. So basically, what is Stockfish? Stockfish is a free and open source chess engine available for various desktop and mobile platforms. So we can run Stockfish either on your phones or your desktop or anything. So प्रोसेसिंग पावर जो है वो कोई भी टाइप का हार्डवेयर का प्रोसेसिंग पावर यूज़ कर सकता है. एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय मार्को कॉस्टेल्बा, योना कुसिंग. सो अ नंबर ऑफ गाइज हैव वर्कड ऑन इट, मैनी कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम अ कम्युनिटी ऑफ ओपन सोर्स डेवलपर्स. सो नंबर ऑफ गाइज हैव वर्क टुगेदर एंड फॉर्म दिस Stockfish. So it is consistently ranked first or near the top of most chess engine rating lists and is the strongest CPU chess engine in the world. Okay. So just to give you an idea, अभी तो तुम ये जो Stockfish है, you can run it on your laptops and you can run it on your like mobile devices too. But there was a time way back in 1990s, like mid 1990s, when पूरा का पूरा computers were designed just for the purpose of playing chess. So I don't know if you know about this guy called Garry Kasparov. He's basically I think he's the greatest chess player of all time. And there was this like big mega match showdown kind of thing between Garry Kasparov and a computer called Deep Blue, which was designed by IBM. And all they like the whole point was कि लोगों को मतलब believe नहीं हो रहा था कि computers can be so good at a game like chess. People thought कि only humans could solve problems like chess. I mean think so deeply. But in 1996, when in their first encounter, Garry Kasparov defeated the Deep Blue machine, but in the second encounter, which took place after 1 year, Deep Blue actually defeated Garry Kasparov. And Garry Kasparov is not someone who is used to losing, and you can say that he is a very sore loser. In fact, that would be an understatement. He really gets angry when he loses. So so I'm just saying कि मतलब तभी
ऐसे पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स बनते थे टू प्ले चेस, एंड अभी तुम देखोगे ना तो तुम्हें द like this stockfish is better than any player right now. For example, the current world champion is Magnus Carlsen, and I don't think Magnus Carlsen can defeat stockfish in a one-on-one game. It would be really, I think it is impossible. The machines are really strong. So it just shows the advancement of technology. Also one more point that I want, like thing that I want to point out here is कि आप ये देखो Linux जो है उसमें भी it is all about a community of people working together and creating softwares. It is never one person or just a small group of people. It is a good large community. Similarly here it's not just 2, 3, 4 people. It's a community of open source developers. So people, like, even small contributions made to open source communities can be very significant, because if a number of people make small contributions, that can add up and become very significant. Okay, so that's about Linux and Stockfish. And in fact I can show you Stockfish if you want. Just a second, just show you how Stockfish is. Is this software visible? Hello. No, it's not visible. ये चेस का ये बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, अभी वो हाँ अब दिख रहा है. अच्छा, ओके, कूल. सो अभी ये देखो मैंने इधर स्टॉकफिश का इंजन चालू कर दिया है, एंड वो जो पोजीशन होता है ना बोर्ड पे, उसके हिसाब से तुम्हें बेस्ट मूव दिखाना चालू कर देता है. एंड द मोर टाइम यू गिव टू इट ना, इसका ये जो डेप्थ है वो इंक्रीज होता है, तो मतलब वो ज़्यादा टाइम ले रहा है सोचने को, एंड द मोर ही थिंक्स इट इज़ मोर प्रोबेबल दैट ही विल कम अप विद अ बेटर मूव. सो एंड बेसिकली ये दोनों साइड से थिंक करेगा, क्योंकि वो सिर्फ पोजीशन देख के मतलब डिसाइड करता है. इधर जो होता है ना, तुम्हें पूरा गेम तुम ऐसा कोड कर सकते हो इसमें. यू कैन ऑल्सो गिव हिम अ पोजिशन फ्रॉम द मिडल एंड ही विल कम अप विद गुड मूव्स. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. वी कैन प्ले द होल गेम, बट इट्स नो पॉइंट, बिकॉज अगर दोनों साइड से वो खेलेगा तो इट विल बी अ ड्रॉ. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टॉकफिश. Okay, so this is one important thing that you need to understand, that free doesn't necessarily mean open source. So free software का मतलब ये नहीं है कि the software is open source. Organizations can distribute free software without actually giving it source code. So you need to understand the licenses and agreements and all of that. तो जब भी तुम कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ यूज़ करते हो, तुम्हें उसका कुछ मिलता नहीं, तुम्हें एक सेटअप फाइल मिलता है सिर्फ, उसका कोड या कुछ भी नहीं मिलता. एंड इवन व्हेन यू क्लिक ऑन द सेटअप फाइल एंड स्टार्टेड, तुम्हें वो लाइसेंसेस एंड अग्रीमेंट्स पढ़ना पड़ता है, फिर वो एक नीचे टिक करना पड़ता है. तो इफ़ यू मतलब उसको एकदम बराबर से समझना पड़ेगा. बट एकदम ही हाई लेवल पे बोलूँ तो ऐसा तुम डिवाइड कर सकते हो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, विच इज़ नॉट ओपन सोर्स. So yeah, so free doesn't necessarily mean open source. Now let's understand proprietary software. So yeah, proprietary software, also known as non-free software or closed source software, is computer software for which the software's publisher or another person reserves some rights from licenses to use, modify, share modifications, or share the software. It sometimes includes patents rights. Okay. So आप देख सकते हो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में एकदम क्लियरली आपको सोर्स कोड तो मिलने नहीं वाला है, एंड ऊपर से जो डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर को ये बनाया हुआ है, दे ऑल्सो होल्ड द राइट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. मतलब इलीगल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नॉट अलाउड. अगर तुमने वो चीज़ लिया है और तुम 5 लोगों को देते हो तो दैट इज ऑल्सो फ्रॉड. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स you can go into this. And yeah, so it's very important for you to create a patent for something that you like. If something you create is actually very original, then it's important for you to create a patent, and we should all be aware of this, because मतलब अगर पेटेंट क्रिएट कर दिया एंड लेट्स से 10-15 ईयर्स में कोई कंपनी ने तुम्हारा कुछ यूज़ कर लिया, आइडिया है समथिंग, तो यू विल बेसिकली लाइक तुम बैठे बैठे रॉयल्टीज़ कमा सकते हो अगर तुम्हारा पेटेंट सही है. तो या, सो दैट्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. Now let's take a look at a few examples of proprietary software. पूरा माइक्रोसॉफ्ट का जो ये है ना ऑफिस का एवरीथिंग, दैट्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. यू टू बाय इट फ्रॉम द ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट वेब पेज. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, वन ड्राइव, टीम्स. आई थिंक टीम्स में इंडिविजुअल यूजर्स के लिए आई थिंक फ्री है, बट आई थिंक अगर तुम
if you are if you want to buy it as an organization, you have to pay something. And other operating systems, Microsoft Windows जो है, it is a proprietary software. Apple Mac OS, Adobe Photoshop, Adobe का और तो बहुत कुछ होगा Adobe का. And Oracle का Java, I think Oracle का database भी होते हैं. नहीं, database I think free होता है, I don't know. But basically बहुत सारे सॉफ्टवेयर है पेड जो ये वाले कैटेगरी में लाई करता है. So what's next? Okay, so major points of differences between open source and closed source software. तो सबसे पहले तो प्राइसिंग पॉलिसी आता है कि यूजुअली जब तुम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लेते हो इट इज़ फ्री, मतलब फ्री का मान लेते हो, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज बेटर ना, वाई नॉट टू गो फॉर फ्री थिंग. सो या, सो मतलब ओपन सोर्स इज़ फ्री while closed source is always you have to pay some price for it. Then second is security. Now security is a very controversial point because open source में जो source code है वो easily available है सब लोग को. So जो अच्छे लोग होंगे वो source code में गलतियाँ find करेंगे and code को ज़्यादा secure बनाएंगे. But at the same time code is also available for hackers to try to infiltrate, to find the infiltration point, and instead of securing it they can try to take advantage of it. So that is a double-edged sword, and you need to be very careful while using operating like this open source systems. While on the other hand proprietary software में it is considered कि overall वो ज़्यादा safe है because code उतना easily ये नहीं हो सकता है. And even अगर मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा, सबसे पहले बात वर्क करते हैं कि कोड मतलब तुम्हारे जो एप्लीकेशन है वो एकदम सिक्योर हो and all your data stays safe. And so I mean I would lean towards proprietary software in this point. Then quality of support. Of course quality of support में proprietary software has to be better because उनका like they have a responsibility, people are paying for their stuff, so they have to provide right kind of support. On the other hand for open source this, if you ever find yourself in any kind of a trouble and you want some kind of a help, the only place you can go is forums, and basically the community of developers, I mean according to their convenience they will help you if they are free and also. But still जो अपना community of developers होता है, जैसे तुम बहुत सारे जगह पे देख सकते हो Stack Overflow और ये सब जगह पे, कि it is very very quick and बहुत जल्दी तुम्हें ये भी दे देता है answers and all. So I mean, as programmers I think we should we should at least try a few this open source things and try to mess around with it. Then source code availability, okay that's fine, वो तो open source में ही है, उसमें तो है नहीं. And usability में क्या है, there's always एकदम convenience वाली बात होती है closed source software में, कि मतलब अगर तुम एक लेमैन पर्सन हो, तुम एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन हो जिसको ज़्यादा कोडिंग और ये सब प्रोग्राम कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है, तो तुम्हारा जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है वो इतना यूज़र फ्रेंडली बना होता है कि तुम्हें ओनली द इसेंशियल थिंग्स उसके बारे में तुम्हें जानने की ज़रूरत है. सब कुछ चीज़ इज़ ऑल हिडन बेसिकली, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. बट ये वाले में नॉट दैट वेल स्ट्रक्चर्ड आई वुड से, एंड उतना ज़्यादा उसमें डालते नहीं बिकॉज द पीपल हु आर यूजिंग इट ऑल्सो हैव अ गुड आइडिया अबाउट द like this software and all. So yeah, these were the major points of differences. Okay, so ये मेरा first part I think cover हो गया है, which is open source and closed source and understanding what is source code. So अब तक मैं जो भी बोला उसमें कुछ डाउट या कुछ होगा तो मेरे को बता दो. I'll just take a minute का break, and if you have any kind of doubt you can just ask me right away. Did I miss any messages? No. Cool. किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है. Hello. Are we allowed to do some modifications in open source software? Yeah, you are allowed to do modification. क्योंकि मतलब एकदम अगर ओपन सोर्स में तुम्हें सोर्स कोड मिलता है ना, तो तुम वो सोर्स कोड खुद के लोकल सिस्टम पे लेके उस पर जो भी चेंजेस कर रहे हो कर सकते हो, एंड देन यू कैन रन द एप्लीकेशन एंड सी व्हाट चेंजेस यू मेड, लाइक व्हाट इफेक्ट इट हैज हैड ऑन द एप्लीकेशन. एंड इनफैक्ट अगर वो कुछ एक अच्छा कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन का ये है, तो अगर तुम्हें जो चेंजेस बनाए वो एक्चुअली यूजफुल है, देन यू कैन ऑल्सो लाइक
उनको वापस भेज के भी बता सकते हो कि दिस इज़ द इम्प्रूवमेंट दैट आई मेड इन योर कोड एंड दे विल एक्सेप्ट इट. So open source software is basically all over open, or it's a kind of a partially open software that depends upon the company policies, हाँ organization एग्जैक्टली policies. एग्जैक्टली लाइक उसमें बहुत सारे लाइसेंसेज एंड ऑल है. मैंने अभी एकदम ही मतलब वाइडली ये कर दिया है उसको कि ओपन सोर्स एंड ये, बट उसमें भी मतलब उनके क्या बोलते हैं सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसेज होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी. तो इनफैक्ट मतलब कोई कोई ऐसे भी कोड होते हैं जिसमें आई मीन तुम उसको थोड़ा इन डेप्थ फिर देख सकते हो जब तुम सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसेस समझोगे ना उसके. तो बट बहुत सारे कोड ऐसे होते हैं जिसमें तुम लोग सीधा सोर्स कोड पे वर्क कर सकते हो. Got it. या एनीबडी एल्स? ओके कूल. सो आई एम अज्यूमिंग कि सब कुछ एकदम क्लियर है, सबको समझा है एंड आई मूव अहेड. ओके सो व्हाट्स आवर नेक्स्ट पॉइंट? जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, मैं मेरा नोट्स चेक कर लेता हूँ. वर्जन कंट्रोल. ओके फाइन कूल. सो अभी हम लोग ने ओपन सोर्स क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और ये सब देख लिया. नाउ लेट्स मूव टू समथिंग न्यू विच इज़ वर्जन कंट्रोल. सो let me just give you a small scenario where this can be useful. Consider that you're working on a project or something for a long time and at some point उसमें जो है तुम्हारे बहुत सारे bugs और ये सब आने लगते हैं and तुम्हें पता नहीं वो कहाँ से originate हो रही है something. Okay. and so तुम्हें मतलब ये सब bugs हटा के जो previous version था उस पर जाना है जहाँ पे वो सब कुछ एकदम properly work कर रहा था. So ऐसे सब scenarios में जो है ना version control system really help you out. So let's just see what's the definition. Version control is a system that records changes to a file or set of files over time so that you can recall specific versions later. In this session you will use software source code as the files being version controlled, though in reality you can do this with nearly any type of a file on a computer. Okay. तो जो version control है it basically keeps track of all the changes that are made to a file after you attach a version control to specific set of files. It will keep a track of all the changes that are made to the file and it will make sure कि कुछ भी ऐसा चीज़ मिस आउट नहीं होता है. लाइक अगर तुमने 10 चेंजेस बनाए ना तुम्हारी फाइल में तो 10 चेंजेस में जो भी चीज़ होगा ना वो सबके सब कवर्ड हो गया एंड नन ऑफ योर डेटा विल basically all of your data will be preserved. So that is this basic understanding. Actually I'll just give you a small demonstration. एक छोटा सा project जैसा अपन work करेंगे so you will understand ये कहाँ पे useful होता. But just before it, let me just show you the abilities of version control. So version control से you can revert selected files back to a previous state, revert the entire project back to a previous state, compare changes over time. So मतलब पहले फाइल का कैसा था मतलब स्ट्रक्चर एंड अभी फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है, you can compare two structures. See who has modified something that might be causing a problem. So let's say you're working on a big team and अचानक से वापस कुछ error आ गया and nobody knows ये error किसके वजह से आया है. So you can go back and track कि अच्छा ये वाला update किसने बग किया था या ये वाला change किसने किया था. You can track all that. Who introduced an issue and when and more. Okay. Using a VCS also generally means that if you screw things up or lose files, you can easily recover to the last stable version. जैसे मैंने वो सिनेरियो बताया उसमें तुम्हारे bugs वग्स आने लगे and you don't like really know where you screwed up and you just want to recover to the last stable version. That is possible using VCS. VCS stands for version control systems. Excuse me. In addition you get all this for very little overhead. तो ये सब तुम्हें मतलब इतना सारा तुम्हें फंक्शनैलिटी मिलता है बट उसके बदले में वो सिर्फ थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज़ करता है लाइक स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर. सो इट इज़ वेरी पावरफुल टूल एंड वेरी यूजफुल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. एंड सो लेट्स गो हियर. अभी इधर है ना बेसिकली मैंने तुम्हें एक छोटा सा ये बताने वाला हूँ. लेट्स से कि मतलब एन इंडिविजुअल या समझ लो तुम ही वर्क कर रहे हो कुछ ये एज अ डेवलपर एंड तुम्हारा क्लाइंट आगे बोलता है मेरे को एकदम एक सिंपल सॉफ्टवेयर बनाने का है जिसमें वो टर्मिनल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है. गाइस तुम्हें पाइथन का आइडिया है क्या? मैंने पाइथन में कोड किया है. एक्चुअली कोड इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, जस्ट सिर्फ फंक्शनलिटी समझ लो कोड का क्या है. मतलब
बिकॉज ये कुछ भी इसमें जो, तो मतलब अभी के लिए इस पे रख दो। तो उसने बोला कि मुझे एक एकदम सिंपल ये चाहिए जिसमें मैं सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता हूँ टर्मिनल पे। यू आर लाइक ठीक है मैं बना देता हूँ। तो यू से कॉमेंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके, एंड राइट दिस कोड, वर्क्स परफेक्टली फाइल, एंड देन यू सेव दिस टू योर फाइल। ओके, समझो कुछ फाइल है तुम्हारा temp.txt करके, temp.py करके उस पर सेव कर दिया ये, एंड देन फिर वो तुम उसको बताते हो एंड ही सेज ओ दिस इज़ रियली ग्रेट बट नाउ आई वांट टू ऐड अ फंक्शनैलिटी, I want to I want to add a function that returns the sum of two numbers. So you say, "Acha, fine, good." You make a few additions to the code. You add a function that returns the sum of two numbers. Simple 2 lines of code, yeah. And then you submit it. Then you save it back as version 2. तो ये भी तुम्हारा वापस कौन सा था temp.py में सेव हो गया, ठीक है। नाउ क्लाइंट बोलता है अरे एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरे को एडिशन वाला फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, वो मैं मैनेज कर लूँगा, पर मेरे को वो डिफरेंस चाहिए 2 नंबर का। ओके, तो ऐड वाला जो फंक्शन था वो हटा दो एंड मेरे को डिफरेंस वाला कुछ दे दो ऐसा जो डिफरेंस फाइंड कर सके। सो नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू इज़ तुम्हें जो temp.py है वो फाइल खोलना पड़ेगा एंड तुम्हें जो भी तुमने फंक्शनैलिटी लिखा था ऐड के लिए वो सब हटा देना पड़ेगा, बराबर है। तुम्हें ये सब रब कर देना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू वर्क ऑन द न्यू फंक्शनैलिटी विच इज़ ये एक्स कॉमा, ये जो भी है मतलब डिफरेंस के लिए जो कोड लिखना है वो एक्चुअली इधर एब्सोल्यूट वैल्यू होना चाहिए बिकॉज इट्स पॉसिबल वाई कुड बी ग्रेटर देन एक्स, बट फाइन। सो या, so the function to add two numbers is no longer needed, so you will have to replace it with a function that returns the difference between the two numbers. And so you make all the changes as I just mentioned and then you save it as version 3. Okay, so this is what you would do in a traditional manner of writing code without version control systems. But now let's say कि you have version control system, so what advantage it gives you is कि जब तुम print hello world लिखते हो ना तो ये वाला स्टेट तुम सेव करते हो तो ये प्रिजर्व हो जाता है। फिर जब तुम प्रिंट ये एडिशन का फंक्शनैलिटी ऐड करते हो ना तो तुम इसको ओवरराइड नहीं कर रहे हो, तुम अलग से ये वाला कोड ऐड कर रहे हो एक जगह पे, ओके। एंड तो तुम्हारा ये वाला कोड जब तुम सेव करते हो तो ये तो सेव होता ही है, बट ये वाला जो था ना इट इज़ नॉट लॉस्ट टू यू। सो जब ये बंदा बोलता है ना कि मुझे यार एडिशन का कोड नहीं चाहिए, मेरे को सब्ट्रैक्शन का कोड चाहिए, तो तुम क्या करते हो, तुम इधर सब रब वब करने नहीं बैठते हो, तुम सीधा बोलते हो ठीक है मैंने कौन से पॉइंट पे एडिशन का कोड लिखा ही नहीं था, एडिशन का कोड मैंने इधर लिखा नहीं था, मैं सीधा यहाँ पे जंप करूँगा एंड फ्रॉम हियर डायरेक्टली तुम ये वाला कोड लिखोगे, ओके। एंड आई मीन यू माइट थिंक कि अरे जय ये तो क्या बोल रहा है, मतलब ये तो 2 लाइन ऑफ कोड है इधर, इसमें क्या मेहनत है, मैं इधर फटाक से इधर सिलेक्ट करूँगा एंड बैक कर दूँगा एंड फिर मैं वापस ये लिख दूँगा। बट थिंक अबाउट दिस इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर विच इज़ लाइक द थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स एंड 10 अलग अलग फाइल है एंड तुम्हारी जो फंक्शनैलिटी है इट स्पैन्स ओवर 5-6 फाइल्स एंड 5-6 फाइल में से मतलब हर जगह पे तुम्हें 20-30 लाइन ऑफ कोड चेंज करना है, ओके। एंड अभी तुम सोचो कि तुम्हें मतलब तुमने ये सब चेंज कर भी दिया मैन्युअली एंड तुम 2-3 जगह पे अगर भूल गए ना चेंजेस करना तो दैट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, यू नो। एंड फिर वापस सब बग्स ढूंढना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगा। सो दैट कैन बी अवॉइडेड इफ यू हैव वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अगर वर्जन कंट्रोल सिस्टम होगा तो तुम क्या करोगे, पहले वर्जन 1 बनाया तुमने, देन यू मूव टू वर्जन 2, ओके। उनको क्लाइंट को वर्जन 2 चाहिए था, फिर वो बोलते हैं मेरे को वर्जन 3 चाहिए, तो क्या कर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी डायरेक्टली जंप बैक टू वर्जन 1 एंड देन वी राइट वर्जन 3। नाउ वी हैव ऑल द 3 स्टेट्स एंड वी कैन जंप at any point to any of these versions. So what's the difference? This is just the difference basically. ये traditional method है and this is using VCS. So version 1, version 2, version 3 तो बनाना ही है हमें दोनों में, but इसमें क्या होता है जब version 2 बनाते हैं then version 1 gets overwritten by version 2, okay। जब version 3 बनाते हैं तो version 2 gets overwritten by version 3, but instead here the state of all the version is preserved. So basically you can jump from any version to any other version, so we can have a number of versions and keep switching between any versions as per our requirement। ये तो एकदम छोटा सा सैम्पल ये था, दैट इज़ वाई मैंने 3 वर्जन रखा है, बट तुम तो मतलब 10, 15, 20 कितने भी वर्जन रख सकते हो।
बहुत सारे वो सॉफ्टवेयर इसमें भी ऐसा होता है ना 1.0 पॉइंट समथिंग समथिंग 1.0 पॉइंट समथिंग समथिंग एंड इनफैक्ट लिनक्स में है ना, लिनक्स में ऐसा होता है कि जब नए नए वर्जन बनते हैं एंड डेप्रिकेट हो जाते हैं ना पुराने फंक्शंस, तो उनके पास मतलब कुछ तो फोल्डर होता है जिसमें वो पुराने फंक्शंस यूज़ करने का भी सब कोड वो लोग रखते हैं, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू जंप बैक टू दैट वर्जन एंड वर्क विद दैट फंक्शनैलिटी यू कैन डू दैट। ये मैंने वो लास्ट लेक्चर में ही लर्न किया था लिनक्स का जो था उसमें। आई थॉट इट इज़ यूजफुल इधर भी प्लग इन कर सकता। सो या तो मतलब इतना बेसिक ये था गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर तुम्हें ये समझ में आया ना तो फिर इसके आगे जो भी होगा ना वो बहुत ईजी जाएगा। मतलब दिस इज द कोर थिंग, जो भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम गेटअप जो भी है वो सब इस पे ही है। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स हियर देन इधर ही क्लियर कर देता है। एंड अगर ये समझ में आ गया तो फिर एकदम सेट है, मतलब आगे ईजी पड़ेगा। ओके, मेरे को एक दो और भी बता देने दो कि ये तो मैंने ऐसा एग्जांपल दिया। ऑल्सो इफ़ यू, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव हर्ड ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन एंड ऐसा, कि बेसिकली व्हेन यू लाइक ऐसा मलिशियस कोड भी तुम्हारे इसमें ऐड हो सकता है सॉफ्टवेयर में, जिससे कि तुम्हारा जो पूरा डेटाबेस है ना वो पूरा का पूरा उड़ सकता है, या मतलब अननेसेसरी चेंजेस हो सकते हो उसमें। तो इवन इन सच केसेस तुम एक वापस पिछले वाले स्टेबल स्टेट पे जा सकते हो अगर तुमने तुम्हारे डेटाबेस के साथ ये वर्जन कंट्रोल ऐड किया हुआ है। सो जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू अवर सोर्स कोड मैनेजमेंट, इट इज़ इन जनरल एनी काइंड ऑफ अ फाइल। तुम लाइक वो फाइल मतलब क्या बोलो, इमेजेस पे लोग ऐसा प्रोसेसिंग और ये सब करते हैं, एंड उसमें भी मतलब वो बहुत लाइक 10 डिफरेंट वर्जन बना देते हो फाइल के अलग अलग प्रोसेसिंग करके। एंड इमेजेस का भी तुम ऐसा वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ कर सकते हो, डेटाबेसेस पे भी तुम वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ कर सकते हो, मतलब होता है यूज़ एकदम अच्छे से। एंड सोर्स कोड में भी तुम यूज़ कर सकते हो, इट इज़ हर जगह पे तुम यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छे से यूज़ करना आता है तो। सो इट्स नॉट जस्ट यू नो कन्फाइंड टू आवर प्रोग्राम्स एंड ऑल, कुछ भी टाइप ऑफ फाइल कैन बी kept track of. Yeah. So any doubts here? No doubts. So that is great. क्योंकि तुम्हें अगर ये समझ में आ गया तो तुम मस्त एकदम अच्छे से समझ जाओगे अभी आगे जो भी आएगा वो। स्टिल आई हैव वन क्वेश्चन जो मैं जब ये सब पढ़ता था ना तो मेरे दिमाग में आता था, एंड दैट क्वेश्चन इज हाउ इज़ इट पॉसिबल टू स्टोर सो मच इन्फॉर्मेशन, इतना सारा इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली स्टोर करना, हाउ इज़ इट पॉसिबल विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस। अभी मेरा पॉइंट ये था कि चलो ठीक है इधर ये ओवरराइट हो रहा है, बट इधर तो तुम एक ही वर्जन स्टोर कर रहे हो ना कम से कम सॉफ्टवेयर का। तो अगर एक वर्जन अगर 1 GB का है तो फिर इधर तो सिर्फ 1 GB यूटिलाइज हो रहा है, बट यहाँ पे 3 वर्जन स्टोर हो रहे हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम 3 GB जितना स्पेस लग सकता है, विच इज़ 3 times द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट दिस इज ऑक्यूपाइंग एट मोस्ट। सो या दिस वॉज द क्वेश्चन जो मेरे को एकदम दिमाग में आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हाउ कैन इट बी एफिशिएंट एट ऑल, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो एनीवन वांट्स टू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, और एनीवन हैज़ एन आइडिया कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है? अटेम्प्ट करना तो करो भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अकेले ही बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ। ऑलराइट कूल, सो मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी के लिए। सो द आंसर क्लाउड इज, सिस्टम यूज किया होगा ना? हाँ क्लाउड सिस्टम भी यूज़ किया होगा, तो फिर भी उसमें 3 times मतलब उतना ही स्टोरेज यूज़ होता होगा ना। इवन इफ यू आर यूजिंग क्लाउड उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज होगा ना। सो व्हाट इज़ द which I mean what do they do to save on space and to utilize it like efficiently, store it efficiently basically?
ऑलराइट कूल. सो मैं बता देता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. इधर ही था आंसर. सो देयर इज दिस persistent डेटा स्ट्रक्चर करके एक ये है कंप्यूटिंग इसमें, which helps you to store data in a very efficient manner. So let's मैं अभी ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाऊँगा बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस्ड ही हो जाएगा एंड मेरे को भी नहीं पता. बट वंस तुम्हारा मतलब सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर एंड इस पर बहुत फोकस करना, अच्छे से पढ़ना, वो सब डेटा स्ट्रक्चर एंड वो सब हो जाएगा ना, तो तुम ये सब में भी डेल्व कर सकते हो, अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क प्रॉपर्ली. So in computing, a persistent data structure is a data structure that always preserves the previous version of itself when it is modified. So it is a data structure that always preserves the previous version of itself when it is modified. तुम कुछ भी चेंजेस करो डेटा स्ट्रक्चर पे, उसका जो प्रीवियस वर्जन होगा ना वो उसको चेंज नहीं होने देगा, सब कुछ स्टोर करके रखेगा. Such data structures are effectively immutable as the operations do not update the structure in place but instead always yield a new updated structure. The term was introduced by this. Okay, I'll just show you. एक minute. So, मतलब it is basically a tree data structure. मतलब ऐसा टाइप का होता है. ओके ऐसा टाइप का होता है कुछ. कंप्यूटर इज रियली लैगिंग. तो ओके इसमें मैं अपने कोड में बता देता हूँ कैसा. तो जब हम लोग ये लिखते हैं ना, तो ये फर्स्ट वर्जन सेव हुआ ना, तो तभी तो मतलब एकदम नॉर्मल जैसा सेव होगा. अभी फाइल में तुम पहले बार चेंजेस करोगे तो पूरा का पूरा सेव होना ही है. बट जब सेकेंड टाइम तुम ये सेव करने जाते हो ना, सो दी ओनली द लाइन्स दैट आर नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन अवर ट्री स्ट्रक्चर विल गेट एडेड. फॉर एग्जाम्पल ये जो अपना एडिशन का फंक्शनलिटी है वो ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन, ये जो हेलो वर्ल्ड का जो लाइन है ना वो ऐड नहीं हुआ. ओके जब थर्ड टाइम तुम करोगे तभी भी ये सब कमेंट जो ऐड हो गए वो हो गए एंड ये होगा. मतलब इट ट्राइज टू ओनली टेक थिंग्स जो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, एंड जो उसके पास अवेलेबल है ना वो ऐसा नोड्स के थ्रू ऐसा कनेक्ट करके सब डेटा को ऐसा ये करेगा, वापस पूरा फॉर्म करेगा. इट विल जस्ट स्टोर द like address of different places where it needs to go and fetch data to make a one version. मतलब multiple versions are not necessary. मतलब redundant data will never be stored in a persistent data structure. ये print hello world एक बार लिखा है तो unless ये दूसरे कोई कोड में वापस लिखा हो, ये वापस ये नहीं होगा. So yeah, that was, I found it very interesting. एंड मेरे को भी उसको एकदम अच्छे से समझ में नहीं आता कैसे वर्क करता है, बट इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड उसमें तुम देख सकते हो मस्त. सो यस ये मेरा सेकंड पार्ट था रिगार्डिंग वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स एंड वो इधर ख़त्म होता है. सो अभी वर्जन कंट्रोल सिस्टम या किसी में कुछ डाउट होगा तो तुम अभी पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल मूव अहेड विद गिट का इंट्रोडक्शन. वेयर इज दिस? Okay, so yeah, let's move ahead with Git then. अभी Git का जो है अपन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही देखते हो क्या बोलना चाहता है Git के बारे में. एक्चुअली Git के पहले ना अपन वो ये देख लेता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स एक बार सिर्फ विजिट कर लेता है. We have to get So basically there are three different types of version control systems: local version control systems, centralized version control systems and distributed version control systems. लोकल सिस्टम में तुम खुद के ही सिस्टम में जो है फाइल्स के डिफरेंट वर्जन्स को एकदम सिस्टमैटिक मैनर में स्टोर करते हो. तो मतलब अगर तुमने कभी ऐसा किया हो कि तुम्हें कोड में चेंजेस किए हो एंड वो जो चेंजेस किया है ना वो कुछ अलग नाम से तुमने सेव कर दिया, लाइक समथिंग लाइक दैट, यू नो, तुम्हें डिफरेंट ये करना है तो तुम एक ही चीज़ पे वर्क कर रहे हो पर उसके अलग अलग वर्जन बना के सेव कर रहे हो. सो वही चीज़ को है ना ये लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम सिस्टमैटिक बना देता है एंड इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फ्लो. फिर सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में यू हैव अ सेंट्रल डेटाबेस जिस पे यू वर्क. जो भी डेटा है सब कुछ वो इस पे स्टोर होता है
एंड जब भी तुम्हें कुछ चेंजेस है कुछ करना है तो तुम फाइल को ऐसा फेच करते हो, मेक द चेंजेस एंड यू पुश इट बैक टू द सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सर्वर. एंड सिमिलरली बट द थिंग इज हियर मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन वर्क टुगेदर ऑन दिस. बट इसमें जो है ना इश्यूज रेज हो सकते हैं जब स्टेट्स मैच नहीं होते या समथिंग, तो इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. इट इज़ अ लिटिल ड्यूबियस. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, दिस इज़ व्हाट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन. इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ सर्वर कंप्यूटर जिसमें पूरा डेटाबेस है, बट तुम जो है पूरा का पूरा सर्वर में से जो डेटाबेस है ना वही फैच कर लेते हो एंड देन यू मेक चेंजेस टू अ फाइल इन इट. ओके, तो तुम पहले फैच करते हो, तुम्हारे पास खुद ही एक क्लोन जैसा होता है उसका, एंड उसमें से तुम चेंजेस करते हो. एंड लेट्स से सर्वर में से कोई दूसरे बंदे ने भी उठाया वो कोड को, अभी तुम एक दूसरे में भी ये कर सकते हो चेंजेस एक दूसरे के अंदर विदाउट एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद द एक्चुअल सर्वर दिस. So distributed version control system is very interesting. Also I would like you to check ये जो वेबसाइट है ना git.git.scm, इसने बहुत अच्छे से सब दिया हुआ है. So हम लोग तो मतलब हार्डली वी आर जस्ट लाइक टचिंग द सरफेस, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, पढ़ सकते हो. सो ये गिट पे पूरा बुक दिया हुआ है इन्होंने, गेटिंग स्टार्टेड, गिट बेसिक्स, गिट ब्रांचिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड गिट, एवरीथिंग रिगार्डिंग योर गिट इज गिवन. इवन तुम कोई आईडी पे वर्क कर रहे होगे तो आईडी के रिलेटेड स्टफ इज ऑल्सो गिवन. यूजिंग टर्मिनल ऑल्सो यू कैन लर्न हाउ टू यूज इट एंड ऑल. सो जस्ट चेक दिस आउट. कुछ भी मतलब अगर अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना होगा तो ये आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट सोर्स, क्योंकि ऑफिशियल ये एंड ऑफ कोर्स देयर इज रेफरेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ आ जाएगा उसमें. तो या सो ये हो गया. तो अभी अपने को पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट कि उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इट इज़ द बेस्ट. सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गिट. गिट क्या है, व्हाई डू वी नीड टू लर्न गिट. तो इसका खुद का वेबसाइट पे गया मैं एंड लेट्स सी वो लोग क्या बोलना चाहते हैं गिट के बारे में. सो दे से कि गिट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency. Alright, so what are the key points here? इसने जो हाईलाइट किया वही पहले करते हैं. फ्री है वो एकदम, मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है विदाउट एनी दिस. एंड ओपन सोर्स, अपने को पता है ओपन सोर्स क्या है. अपन कोड एंड सब कुछ, मतलब आई थिंक इसमें कोड नहीं एक्सेस कर पाते होगे गिट के, बट इट्स ओपन सोर्स, सो रेडीली अवेलेबल, ऑल द लाइसेंसेस आर गिवन टू यू टू यूज़ इट फ्रीली. इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम. अपन ने अभी लर्न किया कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसा होता है, एक बेसिक आइडिया आ गया अपने को. डिज़ाइन टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स विद स्पीड एंड एफिशिएंसी. नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज योर प्रोजेक्ट इज, गिट विल बी एबल टू हैंडल इट विद स्पीड एंड एफिशिएंसी. ओके, मतलब उसका स्केलेबिलिटी भी बहुत हाई है. मतलब पहले प्रोजेक्ट एकदम, मतलब तुम कितने भी स्केल का प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो तुम गिट यूज़ कर सकते हो. Okay, so second choice is basically how is Git better than his competitors. So Git जो है it is easy to learn, it has a tiny footprint with lightning fast performance, it outclasses SCM tools like Subversion, CVS, Perforce and ClearCase with features like cheap local branching, convenient staging areas and multiple workflows. Okay, easy to learn, वो तो तुम्हें अभी समझ जाएगा जब भी पढ़ाएंगे तब बेसिक्स बताएंगे. It has a tiny footprint. Footprint मतलब if I'm not wrong, footprint is like processing power and storage जो वो यूटिलाइज करता है, इट इज़ वेरी स्मॉल. तो मतलब जो एनर्जी कंजम्पशन जैसा है ना उसका वो बहुत कम है. सो दैट इज़ व्हाट यू मीन बाय टाइनी फुटप्रिंट विथ लाइटनिंग फास्ट परफॉर्मेंस. तो मतलब एनर्जी कंजम्पशन एंड तो बहुत ही कम है, बट स्टिल इट डिलीवर्स अ लाइटनिंग फास्ट परफॉर्मेंस. एंड इट आउट क्लासेस SCM, सोर्स कोड मैनेज. SCM स्टैंड फॉर सोर्स कोड मैनेजमेंट. और मेरे को पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट लगा था, पता नहीं क्यों, बट फिर एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा था. सो इट आउट क्लासेस सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल्स जो इसके कंपेटिटर्स है वो, विथ फीचर्स लाइक चीप लोकल ब्रांचिंग, कन्वीनियंट स्टेजिंग एरियाज एंड मल्टीपल वर्कफ्लोज. ये ब्रांचिंग, स्टेजिंग एरियाज एंड वर्कफ्लोज जो है ना, दीज आर टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू दिस गिट. तो वो तो जब सत्यम, आकाश ये लोग एक्सप्लेन करेंगे ना सब, तो इट विल ऑल गेट क्लियर टू यू. सो या, तो इन्होंने मतलब इतना ही दिया होगा एंड ये बेसिक मतलब समझा है कि गिट इसके लिए मतलब एकदम यूजफुल है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जस्ट लुक एट हियर कंपनीज एंड प्रोजेक्ट्स यूजिंग गिट. गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, नेम द कंपनी एंड दे आर यूजिंग गिट टू वर्क ऑन देयर प्रोजेक्ट्स. ओके,
इट इज़ लाइक इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए, मतलब कंपनीज अगर सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ यूज़ कर रही है तो इट मस्ट बी लाइक द गोल्ड स्टैंडर्ड ना टू डू द स्टफ। लिनक्स ऑल्सो बहुत कुछ होस्ट किया होगा उसने गिट पे। सो या ये था गिट के लिए। अभी तक तो कुछ डाउट जैसा कुछ आया नहीं होगा बिकॉज एकदम पहली सिंपल चीज़ है। ओके okay, yeah, I just had to mention one thing. Why is Git so another reason why Git is so popular is कि Git जो है ना it follows a 3 stage architecture। जो अदर कंपेटिटर्स है ना उसके वो 2 stage architecture फॉलो करता है। अब ये 3 stage और 2 stage architecture में फ़र्क क्या है ना वो आकाश तुम्हें बता देगा, बट ये वन ऑफ द मेजर रीजन है क्यों Git is better। okay, so I guess that's all about Git। Do you guys have any doubts on Git? Alright, cool. I'll move ahead to GitHub. Okay, let's see what is GitHub. So GitHub is a collaboration platform built on top of a distributed version control system called Git. One does not have to worry about losing data on his hard drive or managing a project across multiple computers. One can sync from anywhere, you can track issues, build and test the things, and finally deploy. Alright, so what is GitHub? GitHub is a collaboration platform built on top of a distributed version control system called Git. So it is a collaboration platform, मतलब अलग अलग लोग can work together, collaborate together and work on a single project. Okay, it is built on top of a distributed version control system called Git। मतलब Git जो है that is the base and उसके ऊपर ये वाला जो ये एडिशनल फंक्शनलिटी है वो वर्क करता है विच इज़ GitHub। ओके, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? One does not have to worry about losing data on his hard drive or managing a project across multiple computers. One can sync from anywhere. So I think जैसे एक बंदे ने बोला था अभी कि हम लोग वो क्लाउड पे रख सकते हैं, राइट, सब कुछ। तो क्लाउड पे दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट गिट डज। जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना वो उसको क्लाउड पे होस्ट कर देता है सीधा। देन एनीवन फ्रॉम एनी रिमोट एरिया कैन एक्सेस इट, राइट। एनीवन हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू दैट प्रोजेक्ट as long as he has access to it can access it, खुद के इसमें सिस्टम में ले सकता है and then work on it. So that is exactly how GitHub works and that is why it is so widely used and so इतना ज़्यादा मतलब यूज़फुल है वो। okay, you can track issues, build and test the things and finally deploy। ये तुम थोड़ा सा बाद में समझ जाओगे। so why use GitHub for projects? version control वो देख लिया अपने। keep your code in one place, easily accessible, सब क्लाउड पे है। तो ग्रेट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म, ऑफ कोर्स यू कैन कोलैबोरेट विथ एनीवन। तुम्हें कोई अच्छा सा मतलब अभी दिखाता हो तो तुम्हें ज़्यादा क्लियरली ये हो जाएगा, बट लाइक ये पॉइंट तो तुम समझ लो अभी तुम सब अलग अलग जगह पे हो गए, बट स्टिल यू कैन लेट्स से यू हैव फ्यू फ्रेंड्स, लेट्स से मैं अभी इधर पुणे में हूँ, आकाश अभी सोलापुर में एंड सत्यम अभी लखनऊ में, बट वी स्टिल वांट टू कोलैबोरेट एंड वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, वी हैव सम आइडिया ऑन विच वी वांट टू वर्क। So GitHub makes it possible for us to work even though we are in remote areas. We don't need to be at the same place to create some kind of a application or something. Very very helpful. Okay, and hello world, ये GitHub के पास खुद के गाइड्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो go check it out। GitHub का वेबसाइट बहुत बड़ा है, उसमें बहुत कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो GitHub का। एंड okay, actually let's just go and see GitHub में क्या क्या है। ओके ये क्या हो गया? ओके तो व्हाट डू आई डू, लेट्स फिक्स। ये एक्चुअली मैं साइंड इन होना तो मैं खुद के होम पेज पे आ गया हूँ। तो बेसिकली लाइक तुम बहुत सारी चीज़ें ये कर सकते हो इधर, ये कर सकते हो। लेट्स से तुमको सिंपल कुछ, तुम्हें कुछ भी टाइप का कोड या कुछ फाइंड करना है ना तुम देख सकते हो, जैसे कि मेरे को कैलकुलेटर का बेसिक कोड देखना है कुछ।
सो मैं सिर्फ इधर सर्च में जाके कैलकुलेटर टाइप करूँगा and just look at it. We have 330,000 repositories which are stuff related to calculator. So repository is nothing but the project folder. Like तुम्हारा जो main folder होता है ना, तो repository is just a folder ऐसा समझ लो. The folder in which main project folder in which you have organized all your files related to the project that you're working on in an organized manner. Probably ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर तुमने unorganized रखा होगा तो. बट या सो एक वन प्लेस जहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट के रिलेटेड सब चीज़ें एक साथ में तुमने रखा हुआ. सो जस्ट लुक एट इट. इतना सारा रिपोजिटरीज है तुम कुछ भी एक उठा सकते हो कैलकुलेटर के रिलेटेड. हमने अभी मतलब स्टॉक फिश देखा ना, तो लेट्स चेक चेस के रिलेटेड क्या है. स्टॉक फिश इंजन देखा था चेस के लिए. इंटरनेट बहुत टैग हो रहा है. ओके जस्ट लुक एट इट. अभी इधर भी स्टॉक फिश का ये कुछ दिया हुआ है. सो मैं डायरेक्टली इधर भी जाके स्टॉक फिश का जो सोर्स कोड है ना वो भी चेक कर सकता हूँ. सिमिलरली फॉर कैलकुलेटर है वो इतने सारे रिपोजिटरीज का जो परमिशन इज गिवन आई कैन गो एंड चेक द सोर्स कोड. जस्ट लुक एट दिस. ये रीडमी फाइल जो होता है ना इट बेसिकली गिव्स यू एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इनसाइड द एंड हाउ यू हैव टू रन दिस प्रोजेक्ट. तो ये देखो सोर्स पूरा C++ में लिखा हुआ है. यू वांट टू चेक एनी फाइल यू कैन जस्ट ओपन इट. और ये तुम पूरा कोड तुम पूरा का पूरा कोड दिया होगा. सो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट विद इट. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स रियली. मतलब उतना भी मतलब ईजी नहीं है. ओके तो ये हो गया एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो कुछ भी कर सकते हो. गेम्स पे भी बहुत कुछ दिया हो. बेसिकली तुम्हें कुछ भी अगर इंटरेस्टेड होगा ना तुम कुछ भी चीज़ में तो उसका जाके ऐसा चेक कर सकते हो. मैं पहले ना एल्गोरिदम्स देखता था. ऐसा पूरा एल्गोरिदम्स का कुछ है क्या उनके पास. एंड बहुत कुछ है उनके पास एल्गोरिदम्स के लिए. तो हर एक टाइप का एल्गोरिदम एक साथ में दिया हुआ है. स्टोर करके रखा हुआ. ये वाला मैंने चेक किया था अभी. पाइथन में था. मेरे को पाइथन में लर्न कर रहा था मैं एल्गोरिथम्स. नॉट द बेस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स. बट इधर तो मतलब उसने कैसा आई थिंक इसने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है. मतलब क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स. या तो जस्ट ऐसा ही मतलब बहुत कुछ है. जस्ट एक्सप्लोर दिस. तो मैं सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ अभी क्या क्या चीज़ है. एंड ऑल्सो आकाश एंड सत्यम इसको डीपली ये करेगा तुम्हें. सो यस तो ये सब मतलब दिस इज़ वाई इट इज़ सो यूजफुल. एंड यू कैन कीप योर रिपोजिटरीज प्राइवेट. इट इज़ नॉट लाइक कि जैसे मैं अभी तो हर एक कोड को जाके ओपन कर रहा हूँ. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोड ऐसा ओपन हो. लेट्स जस्ट चेक वन ऑफ माई रिपोजिटरीज इफ आई हैव एनी प्राइवेट रिपोजिटरीज. ओके ये देखो मेरे पास एक प्राइवेट रिपोजिटरी है जो सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूँ और कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता इसको. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी. अभी अगर तुम्हें कुछ ऐसा चीज़ प्राइवेट रखना है एंड यू डोंट वांट अदर पीपल टू वर्क ऑन लाइक टू लुक एट योर कोड यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्राइवेट रिपोजिटरी which is only accessible by people that you allow like collaborators basically. So that's GitHub. इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. बट अगर मतलब तुम्हें लाइक अभी भी तुम सोच रहे हो कि मतलब वाई GitHub क्यों, मतलब मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है GitHub से, इतना यूज़फुल क्यों है वो. मेरे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब मेरे को इंस्टेंटली कुछ ये क्या दे रहा है एडवांटेज. सो लेट्स लुक एट दिस नेक्स्ट. One of the most important reasons why you should be aware of GitHub. क्योंकि पूरा का पूरा सोर्स कोड उठा सकते हो. बट आई डू नॉट एडवाइज दिस. बट द थिंग इज तुम पूरा यू ऑलरेडी सो ना कि पूरा सोर्स कोड इज अवेलेबल. सो आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस लॉन्गर बट यू शुड ऑलवेज नो दी ऑल्टरनेटिव. अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में कुछ अचीव करना है एंड तुम्हारे पास तुम्हें पता है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल लाइक तुम खुद का कोड अभी नहीं कर सकते हो. तो यू कैन ऑलवेज गो एंड बोरो समवन कोड एंड जो भी सिर्फ तुम्हें चेंजेस करने को कर सकते हो. एंड या सो
That's it. Now just one last thing before I end this, कि जो Git और GitHub है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना. Git जो है, it is version control system. Okay, it is installed and maintained on your local system rather than in the cloud. And GitHub जो है ना, it is designed as a Git repository hosting service. तुम्हारा जो Git का रिपोजिटरी है ना, प्रोजेक्ट फोल्डर, उसको होस्ट करने का ये सर्विस है, बस और कुछ नहीं है. गिट ऑलवेज वर्क्स ऑन, मतलब गिटहब ऑलवेज वर्क्स ऑन गिट के बिना गिटहब नहीं वर्क कर सकता. एंड गिटहब इज एक्सक्लूसिवली क्लाउड बेस्ड, जो भी है सब कुछ क्लाउड पे. यू कैन शेयर योर कोड विद अदर्स गिविंग देम पावर टू मेक. ओके, दैट्स फाइन. गिटहब इज अ क्लाउड बेस्ड होस्टिंग सर्विस. गिट इज अ हाई क्वालिटी वर्जन कंट्रोल सिस्टम. या, सो that is, I think that's everything that I have to cover today. And yeah, do you guys have any doubts? Hello. ओके, सो चलो ठीक है, मैंने बहुत बात कर लिया. आई डोंट नो मैं कितने टाइम से बक कर रहा था. और कितना टाइम हो गया? ओके, 1 घंटा जितना हो गया, बाप रे बाप. सो ओके, इन केस अगर तुम्हें मतलब ये सब में से कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब सब कुछ याद नहीं आ रहा है यार मैंने बहुत बोर कर दिया हुआ तुम्हें, तो जस्ट रिमेंबर, ये पूरा 1 घंटे में 2-3 चीज़ थी जो एकदम मतलब रिमेंबर, मतलब एकदम आई जस्ट वांट टू ड्राइव इट इन योर हेड कि so what are the takeaways? Open source community is great and we should try to contribute it to it and also promote it. Okay, think of it as a service to humanity. वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट जस्ट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि तुम जब फ्री कोड सबको देते हो ना, तो मतलब एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा पैसा भी बचाता है. इनफैक्ट आई रेड समवेयर कि $60 बिलियन जितना पैसा बचाता है वो एवरी सिंगल ईयर, दिस ओपन सोर्स कम्युनिटीज. Because code is readily available and good quality code is available, so people don't have to spend their resources on developing like redundant things, something which is already available out there for free. And like people ने भी efforts डाल के बनाया हुआ है, so that you can consider as a service, right? And it's very useful. It should be, what we say, getting the word, like अच्छी बात है, उसको glorify करना चाहिए kind of. Suppose version control system is very powerful tool that can help keep track of all our files, not just code related. कैसा भी type का file हो, it will keep track of it on a system, and the system could be on cloud. Yeah. And GitHub is super useful as it helps us to collaborate with one another in a very efficient manner, even if we are not present at the same location. Okay, तो बस इतना था मेरे साइड से, इतना मेरे को बताने का था. तो अभी मतलब तुम्हें एक आइडिया तो आ गया है कि मतलब क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, लाइक गिटहब एंड गेट और ये सब क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, एंड इससे हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं. एंड अभी ये सब कैसे अचीव करना है, लाइक हाउ टू यूज़ दिस टूल्स, इसके लिए आई विल, मतलब आकाश तुम्हें समझा देगा कि अभी कैसे ये सब यूज़ करता है. तो भाई आकाश. हाँ, थैंक्स जय. थैंक यू. हाँ ठीक है. हाँ हाँ, जय प्रेजेंटेशन ऑफ कर दे. अरे हाँ, 1 मिनट. Okay. Is it visible? Yes. Yes. Okay. Hello everyone. I'm Akash Patil and I'm from third year computer. Currently, I'm working as a technical head at the COMSA. Okay, so that's enough for the introduction. Now we will start doing some practical work. Hmm. As we said earlier, this is the hands-on workshop. So I guess you guys are ready with your laptop to do some practical work. If not, no problem. I will share this PPT later so you can try those things out. Hmm. Okay.
I guess most of the students from the second year, so I will start from very basic. And it's not like the any other college, you can ask the doubt anytime. तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन डायरेक्टली अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द डाउट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो फर्स्ट स्टेप है इंस्टॉलिंग गिट। तो हम पहले गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देख लेते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल। यू जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप गिट डाउनलोड। तो ये पहली वेबसाइट आ जाती है और यहाँ से आप आपके ओएस के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। अभी विंडोज का करेंगे तो ये बस 46 MB का है। अगर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन इज क्वाइट सिंपल। यू जस्ट प्रेस नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इट विल इंस्टॉल। टू चेक वेदर इट इज इंस्टॉल करेक्टली और नॉट, यू जस्ट हैव टू ओपन कमांड लाइन and type git. If you see this file, if you see this, then git is properly installed on your system. तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जब हम git इंस्टॉल करते हैं तो वो एक्चुअल में हमें दो फाइल्स देता है। वो एक git bash और एक git GUI। तो इसके हेल्प से हम गिट के ऑपरेशन कर सकते हैं। जो अब गिट बैश है ना, एक लिनक्स बेस्ड कमांड लाइन इंटरफेस है, तो जिसमें हम सारे कमांड्स वर्क कर सकते हैं। और एक दूसरा है गिट गिट जीयूआई, वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम गिट बैश यूज करेंगे क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है और उससे इजीली हो सकता है सब कुछ। तो गिट बैश कर सकते हैं। हम्म, ये मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में गिट बैश और गिट जीयूआई क्या होता है। हाँ, अब हम जैसे कि जय ने बताया कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम में 2 स्टेज आर्किटेक्चर एंड 3 स्टेज आर्किटेक्चर्स होते हैं, जिसके वजह से वो सब वर्क करते हैं। तो पहले हम 2 स्टेज आर्किटेक्चर एक शॉर्ट में देख लेते हैं क्या होता है। In a two-stage architecture version control system, we work on our working directory, commit some changes, and then push to the repository. Then again, we can pull the changes from the repository. तो ये theoretical part है, वो मैं नहीं बताता, मैं actually टाइप बताता हूँ। ओके, हाँ, तो देखो ये जो दोनों है ना, ये दोनों एक ही है, ये दोनों अलग नहीं है। इन दोनों में सिर्फ कौन से स्टेज में वो वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से वो दोनों अलग हो जाता है। अब देखो ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है। तो ये फोल्डर ही जब मैं इसमें कोड लिखूंगा, कुछ चेंजेस करूंगा, तो वो एज ए वर्किंग डायरेक्टरी होता है। और मैं उस कमिट करके उस कोड को सेव करूंगा ना, तो एक रिपोजिटरी की तरह एक कमिट सेव करता है। तो ये दोनों अलग है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस उनके स्टेजेस के हिसाब से वो अलग हो जाते हैं। अगर मैं एक ड्रॉ करके दिखाऊं तो एक सेकंड। लेट्स सपोज ये अपने दो फाइल्स है। ये अपने फोल्डर में है एक। ये अपना फोल्डर है, उसके अंदर हमारे फाइल्स है। अब इन दोनों फाइल्स में हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ कोड लिखा। और फिर हम उसको कोड को कमिट करके सेव करना है। जब हम उसको कमिट करके सेव करते हैं ना, तो उसका एक वर्जन सेव होता है। यहाँ पे हमने इसको कमिट किया। तो अब देखो इस वर्कफ्लो में क्या हो रहा है। हम अभी वर्किंग डायरेक्टरी में है, मतलब अब यहाँ हम हमारे फोल्डर में है। फोल्डर में हमने कुछ कोड चेंज कर रही है, कोड कोड लिख रहे हैं, तो वो एज अ वर्किंग डायरेक्टरी होता है। जब हम उसको कमिट करके सेव करते हैं तो वो एक रिपोजिटरी सेव करता है। तो इन द सेंस जब हम कमिट करेंगे तो इसका एक वर्जन बन जाता है। तो ठीक है, अब वर्जन बनने के बाद हमें फिर से कोड में कुछ चेंजेस करने हैं। हमें उसमें कोड में कुछ चेंजेस करने हैं, तो अगेन हमें चेकआउट करके एक वर्किंग फिर से वर्किंग डायरेक्टरी में आ सकते हैं। तो हमने फिर यहाँ से फाइल लिया। तो फिर हम इसमें कुछ कोड लिखेंगे। और इसमें कैसा होता है, अगर वर्जन हम वन आपने सेव किया तो इसमें जो ऑलरेडी कोड होता है वो ऑलरेडी यहाँ पे होता है। ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैंक हो जाता है, वो ऑलरेडी पिछले वाला कोड सेव हो जाता है। हाँ, और फिर हमने बाद में कुछ फंक्शनलिटी ऐड की, उसका हमने कोड लिखा, तो इसमें ऐड हो जाता है।
तो अब हम उसको फिर से कमिट करके उसका वर्जन 2 बना सकते हैं। यहाँ पे वर्जन 2 बन जाता है इसका। तो ऐसे पूरा सिस्टम वर्क करता है। अगर आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं वर्क कर रहे तो प्रॉब्लम क्या आ सकता है? लेट सपोज आपने एक ऐप बनाया, कुछ तो व्हाट्सएप के जैसा कुछ तो ऐप बनाया, ठीक है, और आपने उसका मतलब बेसिक कोडिंग कर दी और किसी को यूज करने के लिए दे दिया, तो ठीक है, जब आप देते हो तो उसका एक वर्जन 1 देते हो, तो वो दे दिया, लेकिन बाद में जब आप उसको आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, अगर आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं यूज करते हो तो वो कोड आप उसी डायरेक्टरी में लिखते हो, तो उसमें कुछ बग्स आएगा तो वो उनको रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन वर्जन कंट्रोल सिस्टम में कैसा होता है कि आप आपने वर्जन 1 दे दिया उनको, फिर बाद में आप जब तक इसको नए कोड्स ऐड कर रहे हो, जब तक इसको आप कमिट करके सेव नहीं करते, तब तक वो लोग बाकी जो लोग हैं वो वर्जन 1 ही यूज करेंगे। जब तक हम उसको सेव करके नहीं करेंगे तब तक वो मतलब तब तक हम अपने आराम से सारे कोड को डीबग मतलब टेस्ट कर सकते हैं, कुछ बग्स वगैरह है तो फिक्स कर सकते हैं। तो ऐसा पूरा सिस्टम वर्क करता है, टू स्टेज आर्किटेक्चर वर्क करता है। ये समझ आया तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप। हम्म, अगर ये समझ आया तो थ्री स्टेज आर्किटेक्चर भी समझ समझ सकते हो। अब देखो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। हम्म, कोई बता सकता है इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस टू स्टेज आर्किटेक्चर में एक प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है इसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके, आई विल एक्सप्लेन। देखो ये तो सब सही से चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम कब आता है कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। हम्म, और आपके सपोज आपके पास 4 फाइल्स है। तो मैं 4 फाइल्स लेता हूँ। हम्म, और आपके पास ये 4 फाइल्स है, आपने इसको सेव करके उसका वर्जन 1 बना दिया। हम्म, इसको कमिट करके इसका वर्जन 1 बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोड है। हम्म, आप बाद में उसको वर्जन 1 के लिए रिलीज कर दिया, फिर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, चेंजेस ऐड करने, कुछ फंक्शनलिटी ऐड करनी है आपको। हाँ, तो वो पहले 4 फाइल्स ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 4 फाइल्स है, आपको कुछ फंक्शनलिटी ऐड करनी है। लेट सपोज आपके ये जो 2 फाइल्स है ना, इसमें सारा अच्छे से हो रहा है। हम्म, अब ये जो 2 फाइल्स है ना, इसमें बग्स है, इसमें रेड कर देता हूँ। और ये जो फाइल्स है, ये सब अच्छे से वर्क कर रहा है। हम्म, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी हालत में इसको रिलीज करना ही है। अगर इसमें बग्स है तो आप ऐसे ही इसको रिलीज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गिट का थ्री स्टेज आर्किटेक्चर काम में आता है। जैसे कि जय ने बताया कि गिट इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ थ्री स्टेज आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या होता है, एक वर्किंग डायरेक्टरी और एक गिट रिपोजिटरी, उसके बीच का एक स्टेज आता है, उसको बोलते हैं स्टेजिंग एरिया। तो हम क्या कर सकते हैं, जिस फाइल में बग्स है उनको हम अनस्टेज करके उसी मतलब वर्किंग डायरेक्टरी में रख सकते हैं, और जो जिसमें सारा सही से वर्क कर रहा है उसको हम स्टेजिंग एरिया में ऐड करेंगे, और ऐड करके फिर उसको कमिट करेंगे। अब इसमें देखेंगे तो हम्म, अभी इन दोनों में सब सही वर्क वर्क कर रहा है, और इन दोनों में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको इसको कमिट करना है, हम्म, अगर हमको इसको कमिट करना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अनस्टेज करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों को हम स्टेज करेंगे, सिर्फ सिर्फ इन दोनों फाइल को हम स्टेज करेंगे। मतलब वर्किंग डायरेक्टरी से उनको स्टेजिंग एरिया में लाएंगे। हम्म, यहाँ से हमने उसको स्टेजिंग एरिया में ले लिया, और इन दोनों को ऐसा ही रखा। अब अगर अब हम कमिट करेंगे तो वो क्या करेगा, ये जो अब इस कमिट में है ना, ये जो दो सही से वो करे है ना, वो ऐड हो जाएंगे, मतलब जिसको हमने कमिट करके रखा था, वो ऐड हो जाएंगे। अब इन दोनों में तो बग्स है, तो इसको हमने स्टेज नहीं किया, तो वो क्या करेगा, जो प्रीवियस वाले कमिट में जो अच्छे से वर्क कर रहा होगा ना, वो वहां से 2 फाइल्स लेगा। हम्म, ये दोनों फाइल यहाँ से आएंगी, और ये वर्जन 2 में सेव हो जाएगा। तो ऐसा वर्जन 2 में सेव हो जाएगा। मतलब जो बग्स हो रहे थे हम उनको साइड में रख सकते हैं, और हम अपना वर्जन रिलीज कर सकते हैं।
फिर बाद में आप कभी मतलब बाद में आप टाइम लेके पूरा इसका जो सही से फंक्शनलिटी कर सकते हैं, और फिर इन दोनों को हटा के इन दोनों को इसमें ऐड कर सकते हो। तो बिकॉज ऑफ दिस गिट इज वेरी पॉपुलर। आई गेस यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। वहां पे अगर फाइल्स की डिपेंडेंसी होगी तो? मतलब इस फाइल की, हाँ तो हम उसको अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना पड़ेगा हमें। मतलब इसमें जब हम डिपेंडेंसी के लिए जो कोड लिखेंगे वो ऑलरेडी इसमें तो होगा ही ना। हम क्या कर रहे हैं सिर्फ उसमें, इसमें जो ऑलरेडी इसमें जो कोड है इसमें होगा ही, लेकिन हमें क्या कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इसमें पिछले वाला कोड नहीं है। लेकिन अगर अपडेटेड जो फाइल्स आपने बोला जो हम्म करेक्ट है, ओके। वो उसमें अगर डिपेंडेंसी होगी तो? नहीं, हम फिर उसको अकॉर्डिंगली करेंगे ना। ऐसा नहीं कर सकते, मतलब अपने अकॉर्डिंगली हम सारे चेंजेस करके उसको कमिट कर सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं ना, हम वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। एनी अदर क्वेश्चंस? You can write it in the chat box as well. Okay, so we will move forward. तो ये 3 स्टेज है। तो हम देखेंगे कि हम अपने लोकल गिट रिपोजिटरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने तो अभी गिट इंस्टॉल किया है, तो हाँ अब हम क्या करेंगे, स्टेप्स देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, गो टू योर प्रोजेक्ट फोल्डर। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है। ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, ठीक है। इसमें मेरे 2 फाइल्स है। अभी आपकी फाइल बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ये 2 HTML फाइल्स बनाई है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ओपन गिट बैश इन योर प्रोजेक्ट फोल्डर। तो अभी इस प्रोजेक्ट फोल्डर में हम गिट बैश ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ राइट क्लिक करो। जब हम गिट इंस्टॉल करते हैं तो मैंने जैसे बताया कि आपको गिट जी और गिट बैश मिलता है, तो आपको गिट बैश यहाँ पे ओपन करना है। तो गिट बैश क्या है, एक जस्ट एक कमांड लाइन है, लेकिन एक लिनक्स बेस्ड है। अगर आपको लिनक्स, आई गेस यू ऑल आर फैमिलियर विद लिनक्स, आपको सेकेंड ईयर में हुआ होगा। तो हम इसमें सारे लिनक्स के कोड रन कर सकते हैं, कमांड रन कर सकते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी क्या देता है, मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देता है। हाँ, तो ये मतलब किस डायरेक्टरी में बताता है, तो हम सही से डायरेक्टरी में है, हमारे फोल्डर में है। और ls करके मतलब इसमें सारे लिनक्स के कोड हम मतलब कमांड रन कर सकते हैं। और गिट का जो हम काम करने वाले हैं ना, हम नॉर्मल कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना कमांड लाइन ओपन किया, तो जैसे कमांड लाइन ओपन कर, तो इससे भी मैं सारे कोड गिट गिट के सारे कमांड रन कर सकता हूँ। लेकिन इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप गिट बैश यूज करो। तो गिट बैश से हम करेंगे। तो 2 स्टेप्स तो कर लिए, फिर आगे क्या लिखा है, यूज द फॉलोइंग कमांड टू इनिशियलाइज गिट। ओके, तो मैं पहले बता देता हूँ कि एक गिट स्टेटस एक कमांड है फर्स्ट। ये हमको बहुत जगह लगने वाली है, तो इसको ध्यान में रखो। गिट स्टेटस, तो वो स्टेटस क्या करता है, बेसिकली एड नेम सजेस्ट कि हमें स्टेटस बता देता है अपने रिपोजिटरी का। अब ये क्या बोल रहा है, फाइटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी। मतलब अभी ये ना सिर्फ एक नॉर्मल रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी इन द सेंस वो एक प्रोजेक्ट का फोल्डर है, प्रोजेक्ट फोल्डर को रिपोजिटरी बोलते हैं। अब ये नॉर्मल प्रोजेक्ट रिपोजिटरी है। अगर हमको इसको गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना है, तो हमें ना इसके लिए ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी, गिट इनिट। तो मैं अभी करके दिखाता हूँ। गिट इनिट, व्हेन वी प्रेस गिट इनिट, तो ये बोल रहा है कि इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन, ये अपने लोकेशन है। अगर मैं अब गिट स्टेटस रन करूँ, तो वो दिखाएगा ऑन ब्रांच मास्टर। मतलब अभी हमें मास्टर पे जो फर्स्ट ब्रांच होता है उसको मतलब मास्टर होता है। नथिंग, नो कमिट सेट, अभी तक हमने कोई कमिट्स नहीं किए। अनट्रैक्ड फाइल्स, अभी हम अनट्रैक्ड फाइल्स मतलब ये सारे फाइल्स हमारे वर्किंग एरिया, वर्किंग डायरेक्टरी में। वर्किंग डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे बताया था कि जो जहाँ पे हम कोड लिखते हैं वहाँ पे वो वर्किंग डायरेक्टरी होती है। तो अभी क्या बोल रहा है, हमारे सारे फाइल्स अभी वर्किंग डायरेक्टरी में है। तो मुझे एक बात, हाँ वन मोर थिंग, जब हम गिट इनिट रन करते हैं ना, तो बिहाइंड द सीन्स क्या करता है, वो बिहाइंड द सीन्स है ना, एक डॉट गिट नाम की एक फोल्डर क्रिएट कर देता है। वो अपने आप क्रिएट कर देता है। तो डॉट गिट क्या करता है, सारे
जो अपने फाइल्स है ना उनको ट्रैक करता है। जैसे कि जय ने बताया कि हम उसको चेंजेस सेव करता जाता है ना, तो वो इस डॉट गेट फाइल की हेल्प से वो सारे चेंजेस सेव करते जाता है। तो एक हिडन फाइल होती है। ठीक है। ओके। हाँ। तो हाँ, हमने अब गिट रिपोजिटरी तो बना दी है, लोकल गिट रिपोजिटरी टू बी स्पेसिफिक। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, हाउ टू ऐड प्रोजेक्ट फाइल्स इन द स्टेजिंग एरिया। जैसे कि गिट में 3 स्टेज आर्किटेक्चर है, तो अभी हम वर्किंग डायरेक्टरी में हैं। अभी हमको सारे स्टेजिंग एरिया में लाना है फाइल्स को। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड फाइल, टू ऐड द फाइल इन द स्टेजिंग एरिया यू कैन यूज द फॉलोइंग कमांड। जो पहली कमांड है वो है गिट ऐड, फिर फाइल का नाम, या फिर आप एक फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा तो डायरेक्टली फोल्डर का नाम लिख सकते हैं। तो वो क्या करता है, स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देता है। अभी मैं देखता हूँ, अगर गिट ऐड और मैं फाइल का नाम लिखूंगा, अभी मेरा कौन सा है, होम डॉट एच टी एम एल का करता हूँ मैं। तो होम डॉट एच टी एम एल के करने के बाद वो क्या कर देता है, वो स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देता है। और वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम गिट स्टेटस डालेंगे। सो व्हेन वी गिट स्टेटस, तो दिखाएगा कि जो ग्रीन है उसको हमने स्टेजिंग एरिया में डाला है, जो रेड है वो अभी भी वर्किंग डायरेक्टरी में है। यहाँ पे मैंने बताया था। तो अभी हमारी होम डॉट एच टी एम एल है ना, वो वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में आ गई है। और जो अपना कॉन्टेंट डॉट एच टी एम एल है वो अभी भी वर्किंग डायरेक्टरी में ही है। तो ऐसा हो गया। अगर आपको सभी फाइल्स वर्किंग डायरेक्टरी में एक साथ ऐड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या रन करना पड़ेगा, गिट ऐड डॉट। ठीक है, अब मैं गिट ऐड डॉट करूंगा ना, तो अपनी सारी फाइल्स स्टेजिंग एरिया में आ जाती है। बताया कि सारी फाइल्स अब स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। तो यहाँ तक तो हमने स्टेजिंग एरिया में ला लिया, ले लिया। तो हम उस बाद में इसको कमिट करेंगे। तो कमिट करने के बाद क्या कर देते हैं, उसका एक वर्जन 1 बन जाता है। तो पहले हम कमिट क्या है देख लेते हैं इन शॉर्ट में। जो जय ने बताया, फिर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कमिट, द कमिट गिट कमिट कमांड कैप्चर्स अ स्नैपशॉट ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड करंटली सेव्ड स्टेज, मतलब एक स्नैपशॉट क्रिएट कर देता है जिसमें हम कभी वापस आ सकते हैं। Committed snapshots can be thought of as a safe versions of the project. Git will never change them unless you explicitly ask to it. मतलब वो जो हमारा कमिट बनेगा ना, वो गिट कभी भी अपने आप से चेंज नहीं करेगा जब तक हम उसको खुद से मैन्युअली चेंज नहीं कर दे। द गिट the git add command is used to promote or stage changes to the project that will stored in the commit। मतलब हमें जो यहाँ पे ऐड करने के लिए हम करते हैं। तो फिर हाँ, अब गिट हमें हमने बेसिक मतलब जो किया है, हमें उसको एक वर्जन 1 बनाना है। तो उसका हमें वर्जन क्रिएट करने के लिए हमें ये कमांड रन करनी है। कमांड क्या है, गिट कमिट -m कमिट मैसेज। तो जब हम उसको करेंगे ना, तो हमें उसके कुछ मैसेज देना पड़ता है क्योंकि बाद में हमें पता चले कि इस वाले वर्जन में हमने क्या किया था। तो ठीक है, तो अब मैं अभी ये गिट कमांड रन करके देखता हूँ। गिट कमिट -m, और मैं अभी बोल देता हूँ कि इनिशियल कमिट है। ठीक है। तो अब जैसे मैं कमांड रन करूंगा, तो अब क्या हो जाएगा कि क्रिएट अ मोड 1, मतलब 2 फाइल्स चेंज बता देता है कि क्या क्या हमने कितने फाइल्स चेंज किए हैं, कितने इंसर्शंस किए वगैरह वगैरह। तो अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि हमारा ये वर्जन 1 अब तैयार हो चुका है। मतलब हमने सारे फाइल्स को कमिट स्टेजिंग एरिया में ऐड करके उसको कमिट किया है, तो उसका वर्जन 1 रिलीज हो गया। तो फिर एक बार मैं बता देता हूँ, अभी मैं कुछ कोड में कुछ चेंजेस करता हूँ। मैं यहाँ पे गया, होम डॉट एचटीएमएल ओपन करता हूँ। ठीक है। हाँ, वही चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। आप कुछ फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हो, कुछ फीचर्स ऐड करते हो, उसके लिए उसके रिगार्डिंग हो सकते हैं। अभी मैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए ये सिंपल सा लिख रहा हूँ, ताकि हमें पता चले कि हमने मतलब कुछ चेंज किया है। तो अब हमें इसको फिर से मुझे वर्जन 2 बनाना है। तो मैं अब क्या करूंगा कि अब मैं फिर से गिट ऐड करूंगा। मतलब अभी जब हम कमिट करते हैं ना, तो कमिट करने के बाद वो फिर से अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाता है। जब हम उसका वर्जन 1 यूज करते हैं, कमिट मतलब जो कमिट की कमांड रन करने के बाद वो अपने आप वापस वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाता है। हम्म, तो अभी मैं, हाँ ठीक है, तो हम वापस वर्किंग डायरेक्टरी में आ गए हैं। तो अगर हमें सभी अभी चेंजेस किए हमने उसको ऐड करना है,
तो हम क्या करेंगे, गेट ऐड डॉट से क्या करता है, सारे फाइल स्टेजिंग एरिया में ला देता है। तो ऐड हो गए। अब इसको मैं कमिट करूंगा, फिर से एक बार फ्री से करके दिखा रहा हूँ, कमिट -m। अब हमारा सेकंड कमिट है, तो इसलिए मैं सेकंड कमिट दे रहा हूँ। आप अपने कुछ ऐड वगैरह किया है तो उसका लिख सकते हैं मैसेज में। सपोज आपने एक सर्च फंक्शनैलिटी ऐड की है या फिर कुछ ब्लॉग्स वगैरह ऐड किए, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे अभी तक हमने 2 वर्जन्स अपने ऐप के, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर के रिलीज किए। तो ये था कमिट। मतलब आपको मतलब बेसिक आइडिया तो आ गए। मतलब ये दोनों ही चीजें है ना, वो ज्यादातर यूज होती है, गेट ऐड एंड गेट कमिट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ यही दोनों ऐड कर, मतलब यही दोनों यूज करते हैं कमांड्स। तो यहाँ तक सब क्लियर है। अगर ये पता चलेगा तो आगे का फिर सिंपल है, बहुत कुछ नहीं है। और किसी को कुछ डाउट है तो यहाँ तक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चेंज कर हाँ, सकते हैं। सॉरी, व्हाट इज द क्वेश्चन? जो ब्रांच आपने बोला वो मैंने, मास्टर है ना अभी, हाँ मास्टर है। तो उसको मतलब मास्टर में ही चेंज कर दे या फिर अपने हिसाब से कर हाँ सकते हैं? हाँ, अभी फिलहाल तो हम सभी चेंजेस कर रहे हैं, सो मास्टर में ही कर सकते हैं। हमको ब्रांचिंग, आप जब ब्रांचिंग के बारे में बोल रहे हो तो ब्रांचिंग का हम बाद में सिखाएंगे, वो अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ब्रांचिंग का कल सिखाएंगे। ओके, ठीक। ये जो सारे चेंजेस कर रहे हैं वो हमारे मास्टर, मतलब जो मेन ब्रांच है उसमें ही कर रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ तक सब क्लियर होगा ना तो आगे का कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत। ओके, सो आई विल मूव फॉरवर्ड। तो सॉरी, ये कमिट तो समझ आ गया। अब हम देखेंगे आगे वाले कुछ देखेंगे। तो हमें क्या करना है अभी, हाउ टू कंपेयर बिटवीन प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड प्रीवियस कमिट्स। तो जैसे कि हम अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ फंक्शंस ऐड करने हैं। तो हमने कुछ कोड लिखा। अगर हमें अब क्या करना है कि हमने जो कोड लिखा है ना, उसको कंपेयर करना है किससे, विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस कमिट। जो अपना वर्जन 2 है ना, अभी हम वर्जन 2 कर रहे हैं, मतलब हमारा वर्जन 2 रिलीज हो गया है। जैसे कि हमने 2 कमिट्स किए तो हमारे 2 वर्जन बन गए। अगर मैं अभी जो कोड चेंज करूंगा और मुझे उसको क्या क्या चेंजेस किए वो देखने हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। सेशन, ठीक है, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपनी डायरेक्टरी में, मतलब फाइल में। अगर मैं देखूँ तो ये चेंजेस हो गए। अब मुझे क्या करना है कि मुझे देखना है कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस कमिट्स। अरे कहाँ है? ठीक है, तो उसके लिए पहले इसका कहाँ पे यूज होता है वो देख लेते हैं। वेयर इट यूज, इमेजिन सिचुएशन वी आर वर्किंग ऑन राइटिंग सम कोड to add a new feature in project. In this situation, if you want to check the what changes you have made until now with respect to the previous commit, हाँ, तो उसके लिए हमें git diff run करना पड़ेगा। अगर हम अभी git diff run करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं वो बताएगा। ये अब जो रेड लाइन में है ना, तो सबसे पहले जो जहाँ पे प्लस प्लस होगा ना, उसका मतलब ये है कि हमने उस फाइल में चेंज किया है। अगर ये दिख नहीं रहा तो हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो जहाँ पे प्लस प्लस लिखा होगा तो उसका मीनिंग है कि हमने उस फाइल में चेंजेस किए हैं। अभी हमने जैसे कि देखा, हमने होम रोटेशन में चेंजेस किया है। तो ठीक है, तो फिर हम जो रेड लाइन है ना, वो प्रीवियस वाली कमिट की लाइन होती है। मतलब हमारे सेकंड कमिट में सिर्फ इतना था, और जो ग्रीन दिखा रहा है तो हमने क्या ऐड किया है वो दिखाता है। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने अभी ऐड किया है कि दिस इज डे 1 एंड सेकंड सेशन। तो लिखा दिस इज एडेड फॉर द सेकंड कमिट। तो ये हो गया। और जो कुछ हमने चेंजेस नहीं किया वो व्हाइट लाइन से दिखाएगा। ये जो 2 लाइन है वो वैसे के वैसे ही, और इस लाइन को हमने चेंज किया है। तो ये गिट डिफ क्या करता है, वो सारे चेंजेस दिखा देता है। तो ये बहुत जगह यूजफुल होता है गिट डिफ, तो सारे चेंजेस देखने के लिए। हाँ, अगर ये होगा तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले हम कहते कि हाउ टू अनस्टेज अ पर्टिकुलर फाइल।
तो पहले इसका कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले। हाँ, इसमें मैंने बताया था कि ये दो फाइल्स में बग्स है और मुझे इसको स्टेजिंग एरिया में नहीं लेना। हाँ, अगर सपोज आपने सारे फाइल्स को गलती से सारे फाइल्स को अपने स्टेजिंग एरिया में ले लिया, फिर बाद में आपको पता चला कि अरे इसमें तो बग्स था, तो मुझे उसको अनस्टेज करना है। तो अनस्टेज करने के लिए मुझे अनस्टेज करना है, मतलब उसको अनस्टेज क्यों करना है, क्योंकि उसको नेक्स्ट वाले कमिट्स में ऐड नहीं होना चाहिए। तो उसको अनस्टेज करने के लिए हम ये वाला कमांड रन कर सकते हैं। तो आपको मतलब कहाँ यूज करना है वो तो पता चलेगा, तो पता चल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब मैंने सारी जगह पे लिखा है कि वेयर टू यूज, मतलब कहाँ पे यूज होता है, वैसे लिख लिया है। तो आपके ऐसा कुछ ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज नहीं किया, तो क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अभी हम अनस्टेज करके देखते हैं। अभी मैंने चेंजेस किया था, मैंने सारे चेंजेस को ऐड कर देता हूँ। git add। अब अगर मैं जब git स्टेटस रन करूंगा तो दिखा है कि मतलब मैंने जो मॉडिफाई किया था अब ये स्टेजिंग एरिया में आ गया है। तो अभी मुझे मुझे है ना होम डॉट एच टी एम एल में मेरा कुछ तो बग है। मुझे उसको अनस्टेज करना है ताकि वो नेक्स्ट कमिट में ऐड ना हो सके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने कमांड लिखी है, वो क्या है, गिट रिस्टोर माइनस स्टेज्ड और फाइल का नाम। हम्म, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वहां पे भी है, सॉरी इसमें एक माइनस रह गया। तो कहाँ गया, यहाँ पे है। तो उसको अनस्टेज करने के लिए हम क्या करेंगे, गिट रिस्टोर माइनस माइनस स्टेज्ड, और फिर उसके बाद फाइल का नाम, किस फाइल को हमें अनस्टेज करना है। जैसे कि मैंने बताया मुझे इस वाले फाइल को अनस्टेज करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस फाइल का नाम लिख दूंगा और एंटर मारूंगा। ठीक है, अब वो अनस्टेज हो गया। तो चेक करने के लिए हम फिर से गिट स्टेटस रन करेंगे तो बताएगा। अब यहाँ पे रेड में शो कर रहा है, तो रेड का मीनिंग अब मैंने आपको बताया था कि वो रेड में है, मतलब वो अभी भी वर्किंग डायरेक्टरी में है। अगर ग्रीन दिखा रहा होगा तो स्टेजिंग एरिया में होता है। तो हाँ, तो ये इसमें कुछ किसी को डाउट है क्या तो पूछ सकते हो, स्टेज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं वगैरह। ओके, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, तो अनस्टेज क्यों करते हैं वो तो पता चल गया। लेकिन अभी अभी देखेंगे ना आप, मैंने अनस्टेज तो किया है, लेकिन जो मैंने जो कोड ऐड किया था ना वो अभी भी दिख रहा है। जैसे कि अभी मैंने ऐड किया था ना अभी सेकेंड सेशन, अगर मैं गेट डिफ रन करूंगा तो, तो वो कोड अभी भी वहां पे है। अगर मुझे लेट सपोज वो मुझे कोड चाहिए ही नहीं, मुझे जो अपनी होम डॉट एच टी एम एल है ना वो जो पिछले वाले में कमिट में जैसे थी, मुझे जैसे कि तैसे वैसे ही चाहिए। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ मैस क्रिएट कर दिया। हाँ, तो उसके लिए हम गिट चेकआउट यूज करते हैं। तो पहले उसको कब यूज करता है, यू आर राइटिंग सम कोड इन द वर्किंग डायरेक्टरी बट यू वांट टू डिलीट ऑल द चेंजेस फॉर दैट। कोई भी रीजन हो सकता है। अभी ये तो सिंपल प्रोजेक्ट है, लेकिन आप कोई बड़े प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे होंगे ना, तो ऐसे बहुत से रीजन आते हैं, क्योंकि उसमें सारा मैस क्रिएट कर दिया तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमें जो पिछले वाले कमिट में जो कोड था मुझे वैसे का वैसा ही चाहिए, जो मैंने चेंजेस ऐड किए हैं मुझे उसको डिलीट करना है। अब मैन्युअली करने बैठेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि पिछले वाले कमेंट में कौन से थे और इस वाले जो हमने ऐड किया है वो कौन सा था। तो उसके लिए अगर आपको सारा कोड डिलीट करना है और जो पिछले वाले कोड में जैसा का वैसा उसको चाहिए, तो आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी। हम्म, तो अभी देखो यहाँ पे अभी मुझे ये दिख रहा है सेकेंड सेशन। ठीक है, अब जब अगर मैं इस वाले फाइल को चेकआउट करूंगा, चेकआउट इन द सेंस मुझे फिर से वो पिछले वाले कमेंट की जैसे फाइल चाहिए। उसके लिए कमिट क्या है, गेट चेकआउट माइनस 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 और फाइल का नाम, स्पेस माइनस माइनस फाइल का नाम, और फाइल का नाम क्या था मेरा, होम डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे मैंने सेकंड सेशन लिखा था वो डिलीट हो गया। मतलब जो ये मेरी जो फाइल है ना, जैसे पिछली वाली कमिट में, मतलब सेकंड वाली कमिट में जैसी थी अब वैसे की वैसी हो गई है। जो मैंने यहाँ पे कोड ऐड किया था वो नहीं दिख रहा है। तो इट्स क्वाइट हेल्पफुल। अगर आपने कुछ मेस वगैरह क्रिएट किया था तो वो दिखा जाता। अब मैं गेट डिफ भी करूंगा ना तो कुछ नहीं दिखाएगा, मतलब कुछ नहीं दिखा, मतलब अभी भी कुछ चेंजेस नहीं किए हैं हमने। हाँ, तो अभी गेट स्टेटस करूंगा। ठीक है। हाँ, अभी हम वर्किंग डायरेक्टरी में हमारे क्लीन है, मतलब हमने कुछ चेंजेस वगैरह नहीं किए हैं। तो यहाँ तक सब सही है।
अगर आप कुछ डाउट है तो डायरेक्टली आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो पता चल गया कि गिट चेकआउट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। अगर सपोज आपको सारे के सारे फाइल्स अनमॉडिफाई करने हैं, अपने 3-4 फाइल्स को एडिट कर। हाँ। ओके ओके श्योर। हाँ चलेगा। तो अभी देखेंगे हम। हाँ तो पहले स्टेटस चेक कर लेते हैं। ऐसे बार बार गिट स्टेटस चेक करते रहो क्योंकि हमें पता चलता है कि हम। हाँ, तो हम कहाँ पे है? ऑन ब्रांच मास्टर कमिट नथिंग, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। मतलब अब हमें इस वाले स्टेज में है, वर्किंग डायरेक्टरी में है। और अब हमने अभी कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है। अब हमको चेंजेस करना है। क्वेश्चन क्या था, गिट डिफ के बारे में था ना? ओके ठीक है। हम्म, तो अभी हमें वर्किंग डायरेक्टरी में है। गिट गिट डिफ कहाँ पे यूज होता है? कि देखो हमने अभी सेकंड कमिट कर दिया है, और फिर बाद में हमने उसको कुछ चेंजेस ऐड किए, कुछ फंक्शनलिटी का कोड ऐड किया। तो हमें देखना है कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस कमिट। हाँ तो अभी मैं कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैं फिर से वही ऐड करता हूँ। ये तो मेरा सेकंड कमिट का पूरी फाइल है, अब मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, कुछ फंक्शनलिटी ऐड कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड सेशन। ठीक है। तो ये मैं कोड सेव किया, इसको सेव किया। ठीक है, इसको सेव किया। अब मुझे क्या क्या चेंजेस किए हैं, मैंने क्या क्या फंक्शनलिटी ऐड किया है, उसके लिए मैं गिट डिफ यूज करूंगा। ठीक है। तो गिट डिफ, हाँ इसमें देखो जहाँ पे प्लस प्लस दिखाई देगा ना, वहां पे मतलब उस फाइल में हमने चेंजेस किए हैं। ठीक है। और फिर हाँ, जो व्हाइट लाइन में दिखाई दे रहा है ना, उसमें हमने मतलब ये तो फाइल हो गई, और फाइल के अंदर जो जो है ना वो दिखाएगा। अभी हमने इस लाइन में कुछ चेंज नहीं किया है, तो वो कुछ नहीं दिखाएगा। फिर इस लाइन में जो व्हाइट में दिखा रहा है उसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, और जो रेड में होता है ना उसमें हमने चेंज किया है। और उस लाइन में हमने चेंज किया है, और उस लाइन में क्या चेंज किया है वो देखने के लिए हम ग्रिड में चेक करेंगे। और ग्रिड में दिखाया कि हाँ, उसमें क्या था, पहले तो पिछले वाले कमिट में सिर्फ डे 1 तक था, फिर हमने बाद में उसमें सेकेंड सेशन ऐड कर दिया। तो ये गिट डिफ का मतलब हम चेक कर सकते हैं कि हमने अब तक क्या क्या चेंजेस किए विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस कमिट। सो आई होप दैट्स क्वाइट हेल्पफुल। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, आई विल मूव फॉरवर्ड। तो गिट डिफ का तो समझ आ गया। अब हम कहाँ थे? गिट चेकआउट। हाँ तो गिट चेकआउट भी सबको समझ आ रहा है ना? अगर ये मतलब ये कई कई भी जगह है ना, ये बहुत मतलब रिस्की भी हो सकता है। अगर आपने गलती से गिट चेकआउट -F किया है, तो सारे के सारे फाइल्स मतलब जो चेंजेस किए हैं, जो हमने अभी गिट डिफ में चेंजेस देखा था ना, वो चेंजेस डिलीट करता है सिर्फ। लेकिन आपने गलती से अगर गिट चेकआउट -F कर दिया, तो आपने जितने भी फाइल्स में चेंजेस किए हैं तो वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो जब गिट चेकआउट यूज कर रहे हो तो बी स्पेसिफिक विद दैट, मतलब फाइल का नाम लिख के करो। तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, वरना सारे का आपके कोड चला जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ पे एक नोट लिखा है, टू अनमॉडिफाई चेकआउट द फाइल्स यू फर्स्ट हैव टू अनस्टेज दोस फाइल्स। तो अभी गिट चेकआउट रन करने के लिए ना, अब ऐसा नहीं कि हमने फाइल्स को ऐड किया, स्टेजिंग एरिया में ऐड किया और फिर गिट चेकआउट यूज किया, वैसा नहीं कर सकते हम। हमें गिट चेकआउट यूज करने के लिए ना वर्किंग डायरेक्टरी में होना चाहिए। आप स्टेजिंग एरिया से गिट चेकआउट नहीं कर सकते, आपको पहले वर्किंग डायरेक्टरी में होना चाहिए और फिर गिट चेकआउट करेंगे। अब वर्किंग डायरेक्टरी मतलब स्टेजिंग एरिया से वर्किंग डायरेक्टरी जाने के लिए हमको उसको अनस्टेज करना पड़ता है। और अनस्टेज कैसे करते हैं वो मैंने बताया था, हाउ टू अनस्टेज अ पर्टिकुलर फाइल्स। ठीक है। तो यहाँ तक तो सब क्लियर है। मैं सोच रहा हूँ अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखेंगे व्हाट इज गिट लॉग। तो गिट लॉग क्या करता है, कुछ नहीं मतलब ये पूरी हिस्ट्री बता देता है। अभी मैं ना एक बार फिर से वो ऐड करके थर्ड कमिट बना देता हूँ क्योंकि वो अच्छी से समझ आएगा। गिट ऐड गिट कमिट -n। अभी मैं ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ, अब बाद में अच्छे से लिख सकते हो। कमिट मैसेज में हम क्या लिखते हैं कि हमने कुछ फंक्शनलिटी ऐड वगैरह की, उसके बारे में हम लिखते हैं। ठीक है। वन फाइल चेंज है ना, अब गिट स्टेटस करता हूँ। गिट स्टेटस अब बार बार करते रहो।
क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया है। अब भी बोल रहा है कि नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब हमारे वर्किंग ट्री अभी भी पूरी क्लीन है, हमने कुछ चेंजेस नहीं किए। तो अभी हमारे टोटल 3 कमिट्स हो चुके हैं। हाँ, तो हमें गिट लॉक क्यों यूज करते हैं? टू सी द हिस्ट्री ऑफ ऑल द प्रीवियस कमिट्स। तो हमें अब तक क्या क्या हमने किया है वो देखने के लिए हम गिट लॉक यूज करते हैं। हाँ, तो अभी मैं जैसे कि गिट लॉक करूंगा ना, तो वो ये दिखाएगा कि ये मतलब नीचे से ऊपर जाके देखेंगे कि पहला वाला कमिट, इनिशियल कमिट हमने कब किया था, और ऑथर। अभी मेरे मतलब मैंने लॉग इन किया है इसलिए मेरा नाम दिखाएगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो पीसी का नाम दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है। और फिर डेट बताएगा कि मंडे को किया था, और टाइम के साथ मतलब सारा दिखाएगा। और फिर सेकंड कमिट हमने कब किया था वो दिखाएगा। और फिर थर्ड कमिट, अगर आप किसी भी मतलब अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो और बाकी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है एक पर्टिकुलर कमिट के लिए, तो ऑथर की जगह जिसने भी कंट्रीब्यूट किया है उसका नाम आएगा। अभी तो मैं फिलहाल अकेला ही कर रहा हूँ, मतलब गिट लॉग लोकल गिट रिपोजिटरी में कर रहा हूँ, इसलिए हर जगह मेरा नाम आएगा। तो आप उससे चेक कर सकते हो, जैसे कि जय ने पिछले वाले एक एग्जांपल देते हुए बोला था कि हम देख सकते हैं कि किस बंदे ने कुछ ऐड किया वगैरह है, तो चेक कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम वो कर सकते हैं कि किसने क्या ऐड किया है वो देख सकते हैं, किसने कौन सा कमेंट ऐड किया है वो देख सकते हैं। तो ठीक है, गिट लॉक तो आपको समझ आया। अब गिट लॉक में भी बहुत सारे वेरिएंट्स रहते हैं। हाँ, तो अभी देखो हमारे मतलब अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा तो उसमें बहुत सारे कमिट्स हो सकते हैं, 25-30 कमिट्स हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पिछले वाले 3 या 4 ही कमिट देखने हैं, या फिर पिछले वाले सिर्फ 2 कमिट्स देखने हैं। तो हम क्या करेंगे, तो उसमें लिमिट ये वाला कमांड है गिट लॉग माइनस, और जो लिमिट है ना उसकी जगह हम एक नंबर देंगे, मतलब पिछले कितने कमिट्स आपको चाहिए। अगर मुझे सिर्फ पिछले 2 कमिट्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, गिट लॉग -2। हाँ, तो वो क्या करेगा, सिर्फ मुझे पिछले 2 कमिट्स दिखाएगा। अगर मैं गेट लॉक -1 करूंगा तो मेरे मुझे वो पिछले सिर्फ 1 कमिट दिखाएगा, प्रीवियस 1 कमिट। ठीक है। और फिर बाद में आता है गेट गेट लिमिट के बाद आता है गेट वन लाइन। गेट वन लाइन क्या करता है, सिर्फ हमको कमिट मैसेज दिखाता है। वो बहुत सारे हैं, अब ये सिर्फ सॉरी गेट सॉरी मैंने गलती से कमिट बोल दिया होगा। मुझे क्या करना था, हाँ, गिट लॉग वन लाइन क्या करता है, हमें सिर्फ सिंगल लाइन में दिखा देता है। अब मैं करके दिखाता हूँ, गिट लॉग माइनस माइनस वन लाइन। तो वो क्या कर देता है, वो डेट एंड टाइम ऑथर वगैरह नहीं दिखाता, सिर्फ कमिट मैसेज दिखाता है। और ये जो होता है ना वो हमारा कमिट आईडी होता है। ये कमिट आईडी कहाँ पे यूज होता है, अगर आपको कुछ अभी 3 ब्रांचेस है, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आप हेड मास्टर मतलब अभी कौन से इसमें है वो दिखाता है, मतलब उसके लिए हेड दिखाता है कि आप अभी थर्ड कमिट में है। अगर लेट सपोज जैसे कि जय ने बताया था कि हम किसी भी कमिट में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड कमिट में जाना है या फिर इनिशियल कमिट में जाना है, तो उसके लिए हमें उसकी कमिट आईडी चाहिए होती है। तो इस कमिट आईडी की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर कमिट में जा सकते हैं। तो यहाँ तक सब क्लियर है। और फिर हाँ, ये बहुत मतलब और भी है गिट लॉग के। गिट लॉग -p से क्या होता है कि पूरा डिफरेंस दिखा देता है बिटवीन द ईच कमिट्स। और गिट स्टैट से क्या होता है, इंक्लूड द फाइल्स वेयर अल्टर्ड एंड द रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस एडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द ईच कमिट। अभी ये मैं सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप बाद में खुद से वो सारा एक्सप्लोर कर सकते हो, इसमें बहुत सारे हैं। अभी यहाँ तो गिट लॉग था, सही था। हाँ, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, गिट कमिट, ये सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मुझे पर्सनली ज्यादा यूज होता है इसका। हाँ, तो पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे यूज होता है। You have committed your directory, but later you realized that you forgot to add delete some files in that commit. In that case, you can use the commit amend to add or delete some files without creating a new commit. You can also use commit amend to edit the commit message. अब देखो, हाँ, हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पे सारे कमिट्स किए हैं, लेकिन मुझे है ना पिछले वाले कमिट में कुछ फाइल्स ऐड करनी थी या फिर कुछ फाइल्स डिलीट करनी थी, तो मैं भूल गया था। अगर मैं फिर से करने बैठूंगा ना, तो फिर से ऐड करूंगा और फिर से कमिट करूंगा, तो वो फाइल्स डिलीट करूंगा, तो मतलब वो क्या होगा कि एक न्यू कमिट जनरेट होगा। मतलब एक अलग से कमिट बन जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, वो इसी वाले कमिट को एडिट करना है, मतलब एक नया कमिट नहीं जनरेट करना मुझे, तो इसी वाले में चेंजेस करना है। तो उसके लिए हम कमिट अमेंड यूज करते हैं। तो ठीक है, मतलब कहाँ पे यूज हुआ, अगर ये क्लियर है तो बता दो,
वरना जस्ट टाइप कर दो यस वगैरह, तो मुझे समझ आएगा कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया ही नहीं। ओके, क्योंकि ये कमिट आमेंट मतलब बहुत यूजफुल होने वाला है बाद में आपको। ठीक है, ये कमिट अमेंड तो हो गया। हाँ, तो हम वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ऐड डिलीट कर देंगे। आपको मैंने बताया कि कैसे ऐड करते हैं, मतलब इसे स्टेजिंग एरिया में लाते हैं, उसके अनस्टेज करते हैं, वो सब आपने कर दिया। अब उसको हम सेव करना है, तो हमें क्या करेंगे, कमिट गिट कमिट माइनस माइनस अमेंड। तो ये इसकी कमांड है। तो वो ये ऐसा मतलब दिखाएगा कि क्या मॉडिफाई किया है वगैरह वगैरह। अब ये मैंने यहाँ पे कुछ डिलीट वगैरह नहीं किया था, तो बता देता कि हमने क्या क्या चेंजेस यहाँ पे दिखाएगा, चेंजेस टू बी कमिटेड में सब दिखाएगा। तो अभी ये देखो, अभी ये है ना एक 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 एडिटर टाइप, एक टेक्स्ट एडिटर टाइप कुछ तो ओपन होता है। अब उसको एंटर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। अब इसको सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है। बहुत से मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट में लिख के रखा है। अगर हमें उसको सेव करना है ना इस फाइल को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट प्रेस :WQ एंड एंटर। अब मैं :WQ यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टाइप हो रहा है WQ। अब जब मैं इसको एंटर करूंगा तो सेव हो जाएगा। तो मतलब मैंने कुछ अलग कमिट में से मतलब एक और कमिट नहीं क्रिएट किया, जो पिछले वाला कमिट था उसको एडिट कर दिया है। यहाँ पे दिखा रहा है 1 फाइल चेंज, 1 इंसर्शन एंड 1 डिलीशन वगैरह, जो जो किए हैं ना वो सब दिखाएगा। ठीक है, अब मैं जब गिट लॉग देखूंगा ना, तभी मुझे 3 ही दिखाएगा, क्योंकि हमने पिछले वाले को ही एडिट किया है, कुछ अलग से मतलब नया वाला कमिट जनरेट नहीं किया है। तो यहाँ तक तो ठीक है, बेसिक के लिए इतना ठीक है। अगर अब यहाँ तो सब ठीक चल रहा था, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, तो आपके ग्रुप मेंबर्स है, उनको भी इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है, और आपको ये वाला कोड है ना उनको शेयर करना है। तो एक मेथड क्या हो सकती है, आप मतलब अ, किसी ड्राइव में या फिर जीमेल से सारा कोड भेज सकते हो, लेकिन वो रॉ जाएगा, वो ऑलवेज नॉट रिकमेंडेड। हाँ, तो कितने फाइल्स भेजते रहोगे, अभी तो 2 ही ठीक है, मतलब अगर बड़ा होगा तो हजार हजार फाइल्स होते हैं, तो वो नहीं कर सकते। तो उसको करने के लिए वहां पे रोल आता है गिटअप का। अब ये जो कर रहे थे सिर्फ गिट था, अब यहाँ पे रोल आता है गिटअप का। तो गिटअप बेसिकली क्या करता है, इस वाले फोल्डर को, मतलब इस अपने जो वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब ये जो फोल्डर है, रिपोजिटरी बोलते हैं इसको, फोल्डर को ही रिपोजिटरी बोलते हैं। तो इस रिपोजिटरी को एक ऑनलाइन होस्ट करेगा। हाँ, तो एक ऐसा क्लाउड की तरह मतलब होस्ट करेगा, तो उस वाले लिंक पे जाके बाकी मतलब जो आपके ग्रुप मेंबर्स है उस वाले लिंक पे जाके वो कोड वहां से उठा सकते हैं, या फिर अपने वहां से कॉपी करके अपने उनके खुद के लैपटॉप में ले सकते हैं, और फिर चेंजेस करके वो अपलोड करके आपको भेज सकते हैं। हम्म, तो वो मतलब वो कैसे करते हैं वो देखेंगे अब। हम्म, बस खत्म हो गया आज लास्ट सेशन है, तो आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। तो सिर्फ इतना बुलाऊंगा कि बताऊंगा कि गिट लोकल गिट रिपोजिटरी को गिटअप में कैसे ऐड करते हैं। तो जल्दी से ये देख लेते हैं। तो आप पहले तो गिटअप ओपन कीजिए। आई गेस सभी का गिटअप अकाउंट होगा। अगर नहीं होगा तो ऐड ओपन कर लीजिए गिटअप, लॉगिन वगैरह कर दीजिए, वो बहुत बेसिक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि क्रिएट अ गिट रिपोजिटरी। हाँ, क्रिएट गिट रिपोजिटरी इन द गिटहब। तो गिटहब में गिट रिपोजिटरी करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे न्यू करना, गिट रिपोजिटरी करेंगे, और इसको एक यूनिक नाम देना पड़ता है। अभी मैं गिट हब वर्कशॉप देता हूँ। तो इसमें आप पब्लिक कर सकते, प्राइवेट भी कर सकते हैं। अभी बाकी को मुझे शेयर करना, इसलिए मैं पब्लिक करूंगा। रीडमी फाइल्स वगैरह ऐड करना तो कर सकते हैं, और गिट रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा। हम्म, तो ये मेरी गिट रिपोजिटरी हो गई तैयार। हाँ, तो अभी मुझे है ना ये जो लिंक है ना, ये मेरे रिपोजिटरी की लिंक है। तो इसमें बाकी लोग इसमें जाके सारा कोड देख सकते हैं। तो इसको मैं, हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब तो ये सिर्फ रिपोजिटरी बन गया है, लेकिन इसमें कुछ फाइल्स हमने अभी तक ऐड नहीं किए। तो उसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या है, नाउ ओपन गिट बैश इन लोकल रिपोजिटरी टू रन द फॉलोइंग कमांड। अभी फिर से हमें लोकल रिपोजिटरी में जाके गिट बैश ओपन करना पड़ेगा, जो हमने किया है।
अब हमें ये कमांड रन करनी पड़ेगी। ये कमांड क्या करती है कि इट विल क्रिएट अ मेन ब्रांच इन योर रिमोट रिपोजिटरी, मतलब गिटहब में। अब ये कमांड रन करने के बाद तो फिर या फिर यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं, आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। इस स्टेप्स को फॉलो करके आप सारा ऐड कर सकते हैं। अब ये जब 3 कमांड आप रन करेंगे तो आपकी सारा जो है ना वो इसमें ऐड हो जाएगा। यस, डाउट, कुछ डाउट है क्या, पूछ सकते हो। वहां पे जो मेहंदी है वहां पे मास्टर किया तो चलेगा क्या, क्योंकि हाँ हाँ, कुछ भी आपके हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। ये वाला कमांड ये क्या करेगा, जो अपनी जो रिमोट रिपोजिटरी है ना उसके अंदर एक ब्रांच क्रिएट करेगा। और फिर ये जो अब हम गिट रिमोट ऐड करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, सारा अपने कोड इसमें भेज देगा। मतलब बेसिकली दिखाता है हमें, जो ये वाला कमांड है ना, इट विल क्रिएट अ न्यू कनेक्शन टू योर गिटहब रिपोजिटरी। तो अब हमारा कनेक्शन बन गया है। अब लास्ट स्टेप कौन सा बचता है कि हमें बस ये कोड अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए हम ये वाला कमांड रन करेंगे। अरे क्या हुआ? Just a second. Copy. कौन सी फोल्डर बना था हमने। तो अभी कुछ तो छोटा सा एरर आ रहा है, तो अगर आप यहाँ से फॉलो करेंगे ना तो अभी हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है सब कि ये वाले, अगर आपके नया प्रोजेक्ट है तो ये वाले रन करो, अगर ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो ये 3 बस रन करो। तो ये 3 रन करने के बाद वो ऐड हो जाएगा। तो ऐसा करके करने के बाद हो जाएगा। फिर भी एक बार मैं ट्राई करता हूँ, कुछ तो छोटा सा एरर था। ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है। अब बस लास्ट स्टेप कौन सी बचती है, ये वाला बस पुश करने के। पुश पुश क्या करता है बेसिकली, पुश ना सिर्फ उसको अपलोड कर देता है। अभी हो रहा है। अभी दिखाएगा कि हमने क्या क्या ऐड किया है वगैरह वगैरह, ये सब दिखाएगा। तो ये करने के बाद वर्किंग, हाँ, अब हम जब देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो जो हमारे लोकल रिपोजिटरी में फाइल्स थी वो इसमें ऐड हो गई है। तो ऐसा ऐड कर सकते हो, बाकी लोग इस रिपोजिटरी में जाके वो वाला कोड उठा सकते हैं। और वो कैसे करते हैं, फॉग कैसे करते हैं, ब्रांच क्या है, और फॉग और ब्रांच का जो डिफरेंस है वो हम कल देखेंगे। अगर यहाँ तक सब क्लियर होगा तो ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ये पीपीटी में शेयर करने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो आप ये वाला सब ट्राई करो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है फिर, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया और बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, लेकिन कल अच्छे से होगा सारा। जो बाकी के लोग हैं उनको भी बोलो कि ये वाला सब ट्राई करें, और कल हम ब्रांचिंग कैसे करते हैं वगैरह वगैरह देख लेंगे। ठीक है, सो यू आर कॉन लीव नाउ। हाँ, एक गिट वगैरह डाउनलोड करके। हाँ।
हम्म, हम्म, ठीक है।